वर्ल्ड की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम वायलेंस, जिससे कि हम आज लोग जी रहे हैं, ये महावायलेंस, जो महाभारत इसको कभी कहा गया था, महावायलेंस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चालू हुई थी और इसकी दुर्भिक्षा आज तक भी है और ये शायद बढ़ भी रही है। क्या हम इसको रोक पाए? क्या हम इसको कंटेन कर पाए या रिवर्स कर पाए? यह एक इश्यू है जिसके बारे में आज हमारे प्रबुद्ध वक्ता आपको इसमें आपको ज्ञान देंगे और आपसे सलाह और आपसे विचार लेंगे कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, आप कहिए, देखिए भी तो मेरी किताबों में। तो आज के सेमिनार की विशेषता यह है कि यह यंग पीपल द्वारा, इसमें जैसे कि आप पिछले 6 सेमिनार में देखते आए हैं, ज्यादातर अनुभवी लोग और विद्वान लोग, पर शायद कहीं कमी भी है कि अपने विचारों में दृढ़ या संकल्पित हैं, जबकि नए विचार जिससे कि हम सभी आकर्षित होना चाहते हैं या जिससे कि हम चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी आकर्षित हो, तो उसके लिए आज हमारे पास में एक समूह है जो कि यंग पीपल का, जिसमें वर्षा जी, तृप्ति जी और आशीषा जी और सीए तरुण कुमार जी, ये सभी मुनिश्री के गाइडेंस में आप सबको मार्गदर्शन देंगे और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि हमारी कमियां, जैसे कि समय का पालन ना करना या अपनी बात को लंबे टाइम तक या एक ही पक्ष प्रस्तुत करना, ये शायद आप लोगों से हम सीखें आज। मेरी ऐसी अपेक्षा है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और सबसे पहले मैं वर्षा जी को निमंत्रण दूंगा कि वो हमें नॉन वायलेंस के बारे में बताएं कि हाउ 3 jewels ऑफ आवर जैनिज्म, 3 jewels, they are related to the non-violence and the violence. तो वर्षा जी केजे सोमैया इंस्टीट्यूट में सक्रिय हैं और काफी एक्टिव मेंबर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें उनसे बहुत ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। आप म्यूट हैं वर्षा जी, आप म्यूट हैं। Good morning everyone, and I'll share the screen. Just give me 1 minute. You are able to see the screen, na? Screen has come now. Yes. So as per Jainism, we revere the 5 great personality. It is given in this petal, flower petal, Namo Aryantanang. These are the 5 supreme beings that we revere because of their qualities. And then as per these revered personalities, we follow like demonstration, what we call na effect. So we follow them due to their ideal जो भी उनके विचार है. So the basic purpose of Shraman tradition is to remove the miseries. So ये जो transmigration है, सतत हम जो परिभ्रमण है ना, तो ये हमको इससे छुटकारा चाहिए. So for that, as per the topic given to me, तो वो है सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, and I'll be relating it to himsa and ahimsa. So this is the cosmos, our cosmos world, and here the 3 dots in the cosmos reflects Samyak Gyan, Samyak Darshan and Samyak Charitra. The swastik reflects to the transmigration, and the जो हाथ का पंजा है, तो that reflects the peace, compassion. And Parasparo Jivanam, that I'll come later on. So I'll be connecting
my topic, that is the three chevels with the himsa and ahimsa. So basically, I'll be reflecting on ahimsa, aparigraha, and anekant. These, because these are the foundation pillars, and they reflect samyak darshan, samyak gyan, and samyak charitra. Now, with respect to himsa, y'all are able to see the screen fully? Yes. See here, as per when Mahavir he got enlightened, तो इनका पहला उद्गार था आहा अट्टे लोए. That means the full world is in misery. And then he showed the path of Samyak Gyan Darshan Charitra. So first of all, he reflected on ahimsa. Means he taught us that which what are the living beings and non-living beings, how hinsa is involved. Not only that much, but he said that we have to respect all jivas. So here there is a sutra as per the Acharang Sutra, Neva Sattam Loga Abkhaiya. So this is very, very important sutra. Why this sutra is very important? Because it shows the compassion for every living being, not only the human beings, but all the living beings, even the sthavarkaik immobile jivas. So respect for them. So here the meaning of the sutra is that if you do not respect these living beings, that means you're not respecting yourself. And it's a vice versa sutra, because in Acharang Sutra, you will find such vice versa sutras. So if you're not respecting the other living beings, that means you're not respecting yourself. So you will say how this leads to ahimsa, because respecting is one of the major thing which because it shows the compassion. So due to this time limit, I'll just proceed on. Then comes the aparigraha. So aparigraha, here one analogy is shown. In every all the Jain temples, Derasar, what we call now. So with their painting, it is depicted the world, how the structure of the world is. But here they do not want to make us fear. Means they do वो भय प्राप्त करने के लिए ये picture नहीं है, but just to show कि ये world, if you are sensuous, यानी कि पांच इंद्रिय के विषय में अगर आप ओतप्रोत रहते हो, तो this world you have to come out of it. So here aparigraha. So this is an analogy, the picture that reflects that this is the sansar. And here a human being, he lost his way and he was trapped in a jungle, and behind him came this wild elephant behind him. So he went on running, and then he caught hold of whatever tree branch. So then he comes to know that the branch that I am holding, so downward there is a well, and in the well there are 4 snakes and one crocodile, furious crocodile with their mouth open, like you know, like वो आमंत्रण करते हैं कभी ये बंदा गिरेगा and when we'll get the food. So the analogy is that this magar is like a mohaniya karma, means moha, we are deluded in this sansar, and this 4 snakes, what we, it is an analogy which reflects the kashais, Krodh, Man, Maya, Lobh, and the above there are 2 mouths that are cutting the branches. It reflects that अपना जो आयुष्य है वो कटता जा रहा है, and due to a punya, somebody tries to help us. But what happens is यहाँ पे एक मधुपुड़ा है, honey, वो droplets है ना, इनके मुंह पे जा रहा है. So he tasted this droplet and he felt it very sweet. So जो बंदा है, means the celestial being, that जो भी उपकारी जीव है, उनको बोले कि चलो मैं आपको मदद करता हूँ इस
जो भयग्रस्त जो है इससे मुक्त करने के लिए मैं आपको निकालता हूं, बट देन ही सेड कि अरे आई वांट टू टेस्ट दिस हनी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम 5 इंद्रिय के विषय में इतना फंसे रहते हैं, so this reflects the parigraha, that this parigraha is both external and internal parigraha. So krodh, man, maya, lobh, they are the internal parigraha. The delusion, that is also the internal parigraha. So that they are more dangerous than the external parigraha. So in Tattvarth Sutra also it is mentioned that murcha is also depicted as parigraha. So now, first of all, in this sutra, we have to understand what is ahimsa. Then only samyak darshan is reflected. Unless you are not compassionate, there cannot be any samyak darshan. And in this thing, so if once that compassion comes automatically, you lead to a parigraha way of life. And this reflects the samyak gyan. So Anekantvad reflects the samyak gyan. You have to understand all the viewpoints. It is not that you say that whatever I am saying is the truth. So you have to understand the various perspective. So this Anekantvad means unless you do not have samyak darshan leads to samyak gyan, that is the Anekant way of looking at things. And then the charitra means the aparigraha, which leads to aparigraha. So I have connected these 3A: ahimsa, aparigraha, anekantvad, samyak darshan, gyan, and charitra, which leads to the right way of living. या फिर हम बोल सकते कि ये ट्रांसमाइग्रेशन से हम मुक्त हो सकते हैं. So means I have to see the time also. I think almost 10 minutes has already passed. So you have given me an opportunity to reflect my thoughts. So I'm thankful for that. Over to Tarun Bhai. Varsha ji, you have kept my confidence in young generation. Thanks a lot for that one. I believe you will not be available after some time. So yes, because today I'm living from my native place. Yes. So can we have 2-3 questions before we proceed further? And the final question answers will be at the end. But yes, anything specific for Dr. Varsha, then it's welcome. Anyone? I will begin that one. How these 3 A's are related to the non-violence or the tendency for violence? Can you describe? Yes. First of all, see, like this 3 jewels, samyak darshan, unless you do not understand the compassion, ahimsa, that the basic foundation of Jainism, which is samyaktva, right understanding, that doesn't come out. So first of all, you have to understand what is ahimsa, and ahimsa also both ways. So usually we say कि ये मत करो, वो मत करो, चोरी मत करो, not to kill and all those things, but it has also the positive effect. And ये जो compassion है, ये सभी जीवों के प्रति जो compassionate भाव होना चाहिए, तो that is ahimsa. Okay. And if compassion is there, then you would not ये जो 5 इंद्रिय के जो विषय है, तो you will feel no, this is not the ultimate thing, because hoarding ये भी एक problem है इस जगत में. Like for example, if we say ये जो plastic collections and all, तो ये भी एक आज के burning issues हो गए हैं. So hoarding itself has become an burning issues. So we have to understand all these things in order to eradicate the today's current problem. Okay.
Thank you very much. Any other question? Yes. I think Achyut Kantenji. Please, Achyutji, please unmute and throw your question. Good morning to everyone. Thank you so much, Varsha ji, for your Yes. speech. मुझे ये प्रश्न था कि आपने अहिंसा को सम्यक दर्शन से, अनेकांत को सम्यक ज्ञान से और अपरिग्रह को सम्यक चारित्र से कोरिलेट किया। जैसे सम्यक दर्शन की जो हमने परिभाषाएं ग्रंथों में देखी हैं, वो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लाइक तरीके से है। और फिर जब हम कोई भी श्रावकाचार, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, रत्नगण श्रावकाचार हो अथवा मूलाचार हो, तो सम्यक चारित्र के प्रकरण में अहिंसा, अपरिग्रह ये आता है सम्यक चारित्र के अंतर्गत। तो यहाँ हमने उसको सम्यक दर्शन से कनेक्ट किया, तो हम कैसे संगति बिठा सकते हैं दोनों की? जो फर्स्ट महावीर के जो द्वादशांगी का परूपना करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने जो फर्स्ट अंग सूत्र है, आचारांग सूत्र, उसमें जो फोर्थ अध्ययन है तो वो सम्यक्त्व के ऊपर है। तो वहां पे उन्होंने फर्स्ट जो चैप्टर है उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि जब तक आप अहिंसा को समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको सम्यक्त्व नहीं आ पाएगा या सम्यक दर्शन नहीं आ पाएगा। तो वहां पर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि किसको हिंसा कहते हैं। तो नॉट ओनली द आउटवर्ड हिंसा, लेकिन किसी के ऊपर आप जबरदस्ती करते हो, फोर्स करते हो, तो वो भी हिंसा गिनाए जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन वो सम्यक दर्शन, इफ यू अंडरस्टैंड देन वो जो सम्यक दर्शन है जिनका हम व्याख्या करते हैं कि जो जिसका स्वरूप है तो उसको उसी स्वरूप में देखना, तो वो सम्यक दर्शन है। तो इन दिस सेंस आई हैव कनेक्टेड एंड देन knowledge. So knowledge you can get it only by understanding the ashram and savar nirjara moksha. So if you do not understand Anikantvad, you cannot connect ashram, savar, nirjara moksha. And with respect to aparigraha, because that when that murcha is there with respect to five senses, then till then you cannot implement. So I've connected it with the charitra. Thank you very much. We will close the discussion for Dr. Varsha Shah right now and we'll proceed further. Thank you once again, Dr. Varsha. And thank you everyone. And instead of 3 jewels, I have got 4 jewels today. I said Varsha ji, Tarun ji, Trapti ji or Ashisha ji. And I now pick up the second jewel, CA Tarun Jain. Very active member, actively holding our all conferences and dedicated to the Jainism. I request Tarunji to talk to us on violence and its relation to the non-violence. Tarunji, please. अंत विराजित परम आराध्य को मैं वंदना करता हूँ। और आज वैसे मुनिश्री शायद सुन रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ा, अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि मुनिश्री महेंद्र मुनि का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, 1-2 दिन से उनको फीवर है। मुझे ये जानकारी पहले नहीं थी। शायद अभिजीत मुनि आज अगले स्पीकर के रूप में रहेंगे। मैं उनको भी भावभीनी वंदना अर्ज करता हूँ और उनको स्वास्थ्य की कामना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखता हूँ। वैसे मुनिश्री जी ने जो आज टॉपिक दिया, मतलब मुनिश्री का एक टॉपिक था कि वायलेंस रूट्स एंड सॉल्यूशंस। मैं साथ में मतलब क्वेश्चन रूप में पूछना चाहूंगा कि क्या ये टॉपिक ऐसा हो सकता था क्या कि नॉन वायलेंस एंड इट्स कॉजेज, मतलब हम सोचे जरा इस पे कि नॉन वायलेंस एंड इट्स कॉजेज क्यों नहीं हुआ ये टॉपिक, कैसे नॉन वायलेंस के कॉजेज हो सकते हैं। वो तो एक स्वभाव है अपना, नॉन वायलेंस का कॉज नहीं हो सकता, जो अपवाद होता है उसके कॉजेज होते हैं। इसलिए शायद ये टॉपिक वायलेंस एंड इट्स कॉजेज रखा है, नॉन वायलेंस एंड इट्स कॉजेज नहीं रखा है। जो मेरा विषय है वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, जैनिज्म एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, यानी कि जैनिज्म वायलेंस और नॉन वायलेंस को कौन से दृष्टिकोण से देखता है, उसमें क्या भेद रेखा खींचता है, और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इन दोनों में क्या भेद रेखा हो सकती है, या कि साइंस अपनी कितनी क्षमता रख पाया है वायलेंस एंड नॉन वायलेंस को डिफाइन करने में।
आप अपने स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स देखते होंगे। एक पिक्चर में एक व्यक्ति है जो बड़े ही क्रूर स्वभाव से, क्रूर भावों के साथ, एक मांसाहार करने की इच्छा से, एक ये दृष्टांत के तौर पे है, एक पक्षी को निशाना बनाए हुए हैं, तीर धनुष उठाए हुए हैं। और दूरस्थ अगर आप देखते हैं, एक व्यक्ति बाइनोकुलर लिए हुए देख रहा है ये घटना कब घटेगी, ये हिंसा कब घटेगी। और साथ में हम देखते हैं कि एक सेंट है जो सर्वज्ञ है, ऐसा हम मानते हैं कि सर्वज्ञ है वो भी जान रहे हैं, देख रहे हैं सब। इधर व्यक्ति जो क्रूर स्वभाव के साथ, मांसाहार की विचारों के साथ, भावों के साथ जो निशाना लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ घटा कि उसके क्षय पसंद, कर्मों के क्षय पसंद से उसके जो भाव थे वो शुद्ध परिणामी हुए, वो सारे भाव शुद्ध हो गए उसके। और उसके मन में एक ग्लानि आई कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को और भ्रमण करने के लिए ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूँ। ऐसा सोचकर उसने इस पक्षी को, जो पक्षी के प्रति जो हताहत करने की इच्छा थी, वो उसने उसे त्याग दी। अगर हम इस पिक्चर में देखें और बाइनोकुलर व्यक्ति की अगर कोई पूछे उनसे, तो शायद वो ये जवाब देगा कि हिंसा घटते घटते रह गई, अहिंसा हो गई। और साथ में अगर सर्वज्ञ को पूछे तो उनका शायद जवाब होगा कि हिंसा घट चुकी है और अहिंसा भी घट चुकी है। पूर्व भाव जो थे वहां हिंसा घट रही थी, और आगे के जो भाव आए वहां पे अहिंसा प्रवाह हो रही थी। ऐसे में हम पहले जो व्यक्ति हैं जो बाइनोकुलर लिए हुए हैं, उनकी जो अहिंसा की सोच थी, जो कह रहे थे कि हिंसा घटते घटते रह गई और अहिंसा में परिवर्तित हो गई, वह व्यावहारिक अहिंसा समझ सकते हैं। और जो सर्वज्ञ की जो कही बड़ी बात है, वो परमार्थिक अहिंसा उसको समझ सकते हैं। आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पे जो नेक्स्ट रखा है, साइंटिफिक तौर पे जो बताया गया है, हम उसको एक डिफाइन करेंगे कब वो, क्योंकि उसकी पहुंच अभी तक व्यवहारिक अहिंसा तक ही है, और जैनिज्म ने जो पारमार्थिक अहिंसा तक जो पहुंच दिखाई है, वहां पर हम ये देखेंगे कि साइंस में किस तरह से उसने डिफाइन किया है हिंसा को, और जैनिज्म में भी उसने कैसे हिंसा को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम जो है वो स्वार्थ पर निर्भर कर रही है साइंस के हिसाब से। ऐसा ये मेरा मानना है कि स्वार्थ पर निर्भर हो रही है वहां पे हिंसा। अगर अहिंसा है वहां पे तो पूरी तरह से स्वार्थ पर है। आप देखते हैं कि ये वास्तविक अहिंसा नहीं है। स्वार्थ वहां पर अगर पूर्ण हो जाता है, स्वार्थ अगर आगे नहीं रहा, तो वो हिंसा में भी घट सकता है। पारमार्थिक अहिंसा जो आंतरिक अहिंसा है, वहां पर हम देखते हैं कि अहिंसा जीव का स्वभाव है। जैसे हमने अभी कहा कि हमारा टॉपिक ही है वायलेंस इज इन कॉजेज, तो अहिंसा तो जीव का स्वभाव है। वहां आगे जो कुछ घट रहा है, हमने उसके कॉजेज ढूंढने की कोशिश की है। तो हिंसा एक विभाव है जो हमें भटकाव की तरह लेके जाता है, अहिंसा हमें स्थिरता की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पे जैनिज्म ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हिंसा और अहिंसा को बताया। हम आगे देखेंगे। हम सेकंड रॉ में देखते हैं कि ये जो साइंस, ऐसा मैं ये साइंस वर्ड यूज कर रहा हूँ जो जनरली सामान्य नागरिक के लिए भी यूज किया जा सकता है, वो संबंधों पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर हिंसा और अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है संबंधों पर है। भाई भाई के बीच में अच्छे संबंध है, पति पत्नी के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में। आप देखते हैं कि पूरा शहर शांति से रह रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे अहिंसा है पूरी तरह से। आप अगर भाई भाई के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, संबंध वहां पे खत्म हो जाए, तो वो वहां पे झगड़ा चालू हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होएगा, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो जाएगा। आप देखते हैं सांप्रदाय की अग्नि में पूरा शहर जल जाता है। तो ऐसा क्या घटना घटी? क्योंकि वो तो पहले अगर हम जिसको अहिंसक मान रहे थे, वो हिंसा में कैसे कन्वर्ट हुआ। शहर की बात छोड़िए, यहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे बॉर्डर इश्यूज हैं कंट्री के साथ में। एक कंट्री के साथ में मित्रता है और दूसरे कंट्री के साथ में इश्यूज है। तो ऐसा क्या हुआ, संबंधों पर स्थिर है वहां पे, पूरा संबंधों पर निर्भर कर रहा है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ में अच्छे रिलेशन है, आप देखते हैं वहां पे लगता है कि पूरी तरह से शांति है, अहिंसा है, लेकिन उसी पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ झगड़ा है। तो जिस व्यक्ति को हम अहिंसक मान रहे थे, वह किसी और के साथ में हिंसा कैसे कर सकता है। आप देखेंगे परमार्थिक अहिंसा जो जैनिज्म के आधार पर हम कहते हैं कि ये तो अहिंसा आंतरिक है, बाहरी दिखावा नहीं है। बाहरी तो उसकी प्रवृत्ति है, सिर्फ
से क्रियान्वित हो रही है, अहिंसा आंतरिक घटती है, और हिंसा भी है तो वो आंतरिक है। हम थर्ड रो में देखते हैं उपयोगिता पर निर्भर कर रही है, और वहां पे हिंसा हमेशा वर्जनीय भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कोई नया वायरस आजकल बहुत आते हैं, नया वायरस कोई आया है, उसके इलाज का जो परीक्षण है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो जानवरों पर किया जाता है, जैसे चूहों पर है, पिग्स पर है, उन पर किया जाता है। यहाँ पर मनुष्य को जीने की प्राथमिकता दी गई है कि पहले जीने का अधिकार मनुष्य का है। अगर उसके जीने के लिए किसी का सेक्रीफाइस करना है, बलिदान देना है, तो सारे वहां पर सबको बलिदान दिया जा सकता है। यहाँ पर हम एक तरफ तो अहिंसा समझ रहे हैं, मनुष्य को जीने की प्राथमिकता दे करके, और वहां पर हम दूसरे जानवरों के प्रति हम लोग हिंसा को देख रहे हैं। तो यहाँ पे उपयोगिता पर निर्भर कर रहे हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि सेव द टाइगर लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल का जो असंतुलन न हो जाए, और उसके जो दूरगामी परिणाम है वो मनुष्य जाति पर आ सकते हैं। इस परिणाम के प्रेरित होकर सेव द टाइगर जैसे उपक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ पर क्या हम सेव द टाइगर का जो हो रहा है, क्या उसको अहिंसा मान ले? यहाँ पर उपयोगिता है उस टाइगर के लाइफ साइकिल के रहने की, क्योंकि असंतुलन नहीं दिखाना है। लेकिन परमार्थिक हिंसा में हम देखेंगे हिंसा हमेशा वर्जनीय है। आपने एक कथा सुनी हो कि मैतारी मुनि ने सोने के तो मन के चुगे हुए पक्षी, सोनार का जो मनके थे, वो क्रोंच पक्षी चुग गया था, और मैतारी मुनि ये जान रहे थे, लेकिन उन्होंने सोनार के पूछने पर भी क्रोंच पक्षी का नाम नहीं बताया। उन्होंने अपने देह त्याग करना उचित समझा। तो कितने उनके मनोभाव ऊंचे रहेंगे हिंसा और अहिंसा के प्रति। वैसे डॉक्टर तृप्ति आगे लेने वाले हैं हिंसा के कारणों को। मैं संक्षिप्त में सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट है। साइंस में अगर हम देखें, अहिंसा के कोई कारण नहीं वहां पे बताए गए हैं, अहिंसा के कोई कारण नहीं बताए गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, किसी का आवाज आ रहा है, अगर वो अपने आप को म्यूट करें तो। तो हिंसा के कारण बताए गए, जैसे केमिस्ट्री अगर है तो रसायनों का असंतुलन बताया गया है। वहां पे जो ग्रंथियों हैं, वहां पे रसायनों का असंतुलन हो जाता है, तो हिंसा के कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजी में मनोवृत्ति को बताया है, जेनेटिक साइंस में जीन्स को बताया है, और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बोलता है वातावरण, जैसा वातावरण वैसा आचरण। यहाँ पर हम दूसरे साइड में एक और शब्द जोड़ सकते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, दार्शनिक व्यक्ति है, तो वो शायद कर्म को इसका कारण बताएगा, कर्म के उदय को। वैसे मोटा मोटी अगर देखें तो एक तरह से ये पांचों कारण समवाय के रूप में हो सकते हैं, किसी हिंसा के कारण बन सकते हैं। परमार्थिक अहिंसा में भगवान महावीर ने आचारण भाष्य में दूसरे उद्देश्य के सूत्र 13 में बताया है। उन्होंने वहां पे पूछा है कि कब पुरुष हिंसा में प्रवृत्त होता है, तो उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति जो द्रव्य सचित द्रव्यों का, उसके पास अगर सचित द्रव्यों की अभिलाषा रखता है, और उसके पास या तो है और उसके खो जाने का उसको भय है, या वो कषायों से ग्रसित मानसिक दोषी है, क्रोध रूपी कह सकते हैं, वो बाहरी पदार्थों की अभिलाषा रखता है, और उसके अभाव में वो और तीव्र अभिलाषी होता जाता है। ऐसे मंद ज्ञान के कारण बोधि रूपी ज्ञान वो पाता नहीं है, और ऐसे में तत्व से भी वो अनिभिज्ञ हो जाता है, और तत्व से अनिभिज्ञ व्यक्ति व्यथा का अनुभव करते हुए हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। महावीर भगवान ने ऐसा बताया है। तो सूक्ष्म बात बताई है वो हम आगे वाले में देखेंगे कि आगे इसी तरह आचरण भाष्य के 6ठे उद्देश्य में भगवान ने कहा है कि अव्रति, प्रमादी या परिग्रही व्यक्ति, जैसे वर्षा शाह जी ने कहा था कि परिग्रह भी एक कारण है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरह से सम्यक ज्ञान दर्शन रूपी जो एक्सप्रेस हाईवे है उस पर चलने का उन्होंने कारण बताया है। तो आचरण भाष्य के 6ठे उद्देश्य में यही बात बताई, अवृत्ति, प्रमादी या परिग्रही व्यक्ति हिंसा में प्रवृत्त होता सकता है। या हिंसा के कारण इस तरह से बताए गए। आचरण भाष्य के अध्याय 5 में सूत्र 101 में जो बात बताई गई है कि पुरुषा तुमंसी नाव सच्चैव जम हंतवंती मनसी, अर्थात जिसे तू हनन योग्य मानता है वह तू ही है। अर्थात जिसको हम मारने की इच्छा रख रहे हैं वो हमसे भिन्न नहीं है। तो जब अगर जिसको हम मारने की इच्छा रख रहे हैं वो हमसे अगर भिन्न नहीं है, तो हम सोच सकते हैं हम घात किसका कर रहे हैं। हमने जो पहले चित्र में बताया कि व्यक्ति तीर छोड़ रहा था, समझ लिए वो तीर छोड़ देता है,
पंछी को मारने के लिए, तो पंछी को तीर लगे या न लगे ये उसके कर्मों का उदय है, सिर्फ वह तो निमित्त था, उसके कर्मों के उदय से उसको लगेगा। असाता अगर वो हनन होता है, असाता वेदनी कर्म का उससे उदय हो सकता है, लेकिन यहाँ हिंसा की घटना पहले ही आंतरिक रूप में घट चुकी थी, तो साइंस वहां तक अपनी पहुंच कैसे दर्शाएगा? जैनिज्म ने तो इतनी सूक्ष्मता से बताया है, अपनी आत्मा को नए अशुभ कर्मों से बांधना हिंसा माना है। आत्मघात कर रहे हैं हम लोग, तो अपनी आत्मा को ही नए कर्म से बांध रहे हैं, तो वहां हिंसा घट रही है। और शुभ भावों में प्रवृत्त रहना अहिंसा है। ये एकदम जो सूक्ष्म बारीक भेद बताया है जैनिज्म ने, जो साइंस मुझे लगता है वहां आवश्यकता, उपयोगिता और स्वार्थ के अनुसार मनुष्यता को प्राथमिकता देते हुए हिंसा और अहिंसा को देख रहा है वहां पे। इसका कारण एक हो भी सकता है, साइंस की शायद अभी तक उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्मा तक पहुंच पाए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि वो व्यवहारिक बाहरी तौर पर जो हिंसा अहिंसा दिख रही है, उसी को वो मापदंड अपने साधनों, अपने टूल्स के द्वारा उसका मापदंड कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तक पहुंचता नहीं तो उसको बारे में वो बता भी नहीं पाएगा। हम देखते हैं पारमार्थिक अहिंसा जो साइंटिफिक तौर पे हम बता रहे थे, वो उस पे अगर हम लोग मतलब पारमार्थिक अहिंसा पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो जो व्यवहारिक अहिंसा बाहर है वो भी ज्यादा स्थिर नहीं रह पाएगी। जैनिज्म ने इसको डिफाइन किया कि खुद के प्रति हम अगर जागते हैं, खुद के प्रति यानी कि हम आंतरिक यात्रा कर रहे हैं तो वो अहिंसा है, और पदार्थों के प्रति जाग रहे हैं, बाहर की हम यात्रा कर रहे हैं तो वो हिंसा है। और दूसरे शब्दों में कहें तो खुद के प्रति सोना, हम आंतरिक यात्रा न करके बाहरी दिखावा कर रहे हैं तो खुद के प्रति सोना हिंसा है, और पदार्थ के प्रति सोना अहिंसा है। मेरे कुछ एक क्वेश्चन के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ विराम दूंगा। क्या साइंस आंतरिक अहिंसा की खोज कर सकता है क्या बिना आत्मा को जाने? साथ में एक और क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम पुरानी गाथाओं से देखें, क्या साइंस कभी एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्रूर, क्रोधी और विषैले चंड कौशिक सर्प को ऐसा क्या घटना घटी तो वो आगे के काल में अहिंसा के परिणामों में प्रवृत्त हो गया? मैं अपने आज के सेशन को यहीं पे विराम दूंगा, समय उतना ही। मैं अभी मुनिश्री से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अगर वो अवेलेबल है, नहीं तो मैं उनको फोन करके, मैं एक बार आपसे आज्ञा चाहूंगा, उनको फोन करके मैं बता दूं उनका वक्तव्य। प्रताप जी एक मिनट फोन कर लेता हूँ। हाँ तरुण जी, कुछ कोकिला जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। प्लीज मेरे मनीष जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप ठीक है। प्रसन्नात्मा तीक्ष्ण नयनमवतारं नयतुम्। योग प्रधान गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ उपस्थित all the keen, enthusiastic and energetic seekers present here, all the distinguished members of the society, scientists, scholars and the people from all around. आज हम एक स्पेशल इशू पर बात करने जा रहे हैं, वह है वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। हमें चयन करना है, जैसा हमने पूर्व स्पीकर वर्षा जी से भी सुना, तरुण जी से भी सुना, तो 3 पिलर्स ऑफ जैनिज्म के 3 इक्के कहे, वो है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह। ये देखने में 3 हैं तो वैसे मूल एक है, वो है अहिंसा, हिंसा न करो। तो जैनिज्म ऐसा नहीं कहता कि प्रेम करो, करुणा करो, वो कहता है कि हिंसा मत करो। वो नहीं करने पे ज्यादा बल दे रहा है, करने की बात ज्यादा नहीं कह रहा। जनरली हम देखते हैं हर चीज करने की बात कही जाती है, तुम किसी को ये कहो, किसी को वो कहो, ये करो, वो करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो।
हमेशा हमें कुछ करने की प्रेरणा जनरली दी जाती है, पर जैनिज्म में जितनी मेजॉरिटी ऑफ चीजें उसमें नहीं करने की बात को कहा है, उसका रूट क्या है, ये अहिंसा का मतलब यहाँ पे क्या है? अहिंसा मतलब हिंसा न करना, मतलब है विभाव में मत रहो, स्वभाव में रहो। डोंट जस्ट बी आउट फ्रॉम यू, बी इनसाइड यू। देख, इनसाइड आउट अप्रोच को वो प्रमोट कर रहा है कि हम पहले भीतर जाए फिर बाहर आए। हम जनरली क्या करते हैं, पहले बाहर घूमते फिर अंदर जाते, तो हमें ठीक उल्टा करना है। हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, पूरे टाइम हम क्या करते हैं, हम देखते रहते हैं। और किसे देखते हैं? दूसरों को देखते हैं, अपने आस पड़ोस वालों को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, लोगों की कमियों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में देखते हैं, पर क्या हम खुद की परीक्षा करते हैं? आप में से काफी लोगों के पास मोबाइल्स है, स्मार्टफोन्स हैं। आप में से जितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, एसेंशियली वो भी स्मार्ट होंगे, हम ये मान के चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, स्मार्टफोन है या स्मार्ट होना, ये हमें समझना है। तो ये स्मार्टफोन एक गैजेट है जिसमें बहुत सारे नंबर है। जैसे हमारे पास एक देवेश जी बैठे हैं, इनके मोबाइल में पता नहीं कितने सारे नंबर्स, 1000-2000 नंबर्स तो होंगे आराम से। इनके पास ये बता रहे 3000 प्लस नंबर इनके पास। अब 3000 नंबर है, मतलब कि चाहे तो एक बटन दबाते ही 3000 में से किसी से भी कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको कहा जाए कि इन्हीं का नंबर के डायल करे, तो क्या आवाज आती है, थोड़े वयाने कॉल करा, अभी ये नंबर व्यस्त है, अभी संपर्क क्षेत्र से बाहर। यानी हमारे संपर्क क्षेत्र में वो 3000 लोग हो सकते हैं और हमारा संपर्क स्वयं से नहीं हो रहा। मतलब this mobile can connect with all of others but cannot help us connect with ourselves. What can help us connect with ourselves is smile, not mobile. तो जब हम स्माइल करते, वो हिंसा है कि अहिंसा? हमें समझना है, स्माइल हमारा एक तत्व है। स्माइल मतलब अंदर की प्रसन्नता, खाली चेहरे की नहीं, भीतर की पूरी बॉडी एक पॉजिटिव हार्मोनी में, हैप्पीनेस में, अंदर का एक ब्लिसफुलनेस के स्टेट में हम रहें। तो जब हम हैप्पी होते हैं, हम वायलेंस में नहीं जाते। वायलेंस कौन करता है? जो अंदर से अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है, टॉक्सिकेटेड है, अंदर से क्लटर्ड है, वही तो हिंसा कर रहा है। तो इसको तत्व की भाषा में कहा गया विभाव। तो दो शब्द हो गए, विभाव और स्वभाव। पूरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो विभाव से स्वभाव की यात्रा, हिंसा से अहिंसा की यात्रा, बाहर से भीतर की यात्रा। तो हमें बाहर से भीतर की यात्रा है, उसमें हमें निश्चित रूप से जुड़ने का प्रयास करना और सबको जोड़ते जाना है, क्योंकि स्माइल स्प्रेड वेरी फास्ट। तो आज से एक संकल्प करें अहिंसा के लिए, स्माइल एवरी वाइल, हर पल चेहरे पर होगी मुस्कान। जब एक मुस्कान पॉजिटिव फेस में रहेगी, पर ध्यान रखिए कोई पड़ोस वाला गिर जाए तब हंसना मना, किसी के ऊपर कीचड़ उछल जाए तब हंसना मना, वरना वो हंसना भी हिंसा बन जाएगा। वो भी हिंसा है, मतलब किसी को हर्ट करने वाला हो जाएगा। फिजिकल हर्ट, फिजिकल वायलेंस की हम बहुत बातें सुन रहे हैं कि कितने देशों में, अफगानिस्तान में देखें, चाहे वहां पे हम अफ्रीका में देखें, चाहे हम रशिया में देखें, तो रशिया यूक्रेन वॉर को देखें, तो हिंसा हम देखते हैं। पर ये हिंसा मेन नहीं है, ये हिंसा है वो जो फिजिकल वायलेंस है, जो हमें मैनिफेस्ट दिखती है क्लियरली, पर वायलेंस बहुत डीप है। अगर आप देखिए उसके रूट्स का पॉलिटिकल रूट्स देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल वॉरफेयर के जो कारण है, उसके पीछे कुछ लोगों की एक साइकोलॉजिकल नीड है कि मुझे उसको बीट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा बेनिफिट कैसे होगा, मेरा वेल्थ कैसे बढ़ेगा। ऐसी कुछ चीजें पीछे काम कर रही होती है। जो उस वायलेंस का, जो एक्सटर्नल वायलेंस हमें दिखता है, उसके पीछे एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो हमें उस वायलेंस को वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस डिस्टर्बेंस को हटा सके, उस डिस्टर्बेंस, उस डेविएशन, उसको हटा सके, और वहां पर डिटर्मिनेशन डेस्टिनेशन को मीट कर सके। वहां पे अगर हमने उस बेस लेवल के डिस्टर्बेंस को, अंदर के डिस्टर्बेंस को क्लीन कर दिया, अंदर में पीस को ग्रो कर दिया, तो बाहर पीस ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होगी। इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आज से अगर आप चाहते कि इस पूरी दुनिया में अहिंसा का वातावरण बने,
तो आज से आपको अपने भीतर, योर वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन यू, योर परसेप्शन, योर वर्ल्ड, योर एटीट्यूड, योर वर्ल्ड, योर मैनिफेस्टेशन इज योर वर्ल्ड. You change, your world changes. So to bring the change, be the change. We all want to bring the change. But let's now be the change. तो अपने अंदर कोई सटल वायलेंस चल रहा है, उसको हमें लाइन अप करना. क्योंकि आचार्य तुलसी ने सुंदर कहा, सुधरी व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा. तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा. तो अनुव्रत मतलब अनु मतलब छोटा, व्रत में संकल्प. हम एक छोटा संकल्प आज ले इस यात्रा के लिए, टू ब्रिंग द चेंज, लेट्स बी द चेंज. तो बी द चेंज हम पहला चेंज लाएंगे अपने अंदर में, वो है स्माइल एवरीवन. हम प्रसन्नता में रहें. जब हम प्रसन्नता में रहते हैं हमारा गुस्सा चला जाता है. अगर आपको कभी भी गुस्सा आता है, जो किसी के अंदर भी सामने वाले में गुस्सा देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसका गुस्सा समाप्त हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? तो वन सिंपल फॉर्मूला है, उसे कहना है स्माइल प्लीज. आपको अगर गुस्सा आता है तो अपने लिए कहिए कि मुझे हंसते हुए गुस्सा करें. जैसे आप हंसते ही अपनी पत्नी को डांटने की कोशिश कीजिए, हंसते हुए अपने बच्चे से चिल्लाने की कोशिश कीजिए, हंसते हुए अपने से बड़ों से कुछ भी बोलने की कोशिश कीजिए, उसको भी लगेगा मजाक कर रहा है, वो भी बुरा नहीं माने. वो वायलेंस डिस्टर्बेंस का वेव जो कैस्केडिंग इफेक्ट ला सकता था, वो रुक जाए. पॉइंट वन. और दूसरे को हंसाना उस समय में बहुत मुश्किल. दूसरा गुस्सा कर, उसको बोले स्माइल प्लीज, तो वो और साथ गुस्सा आ सकता. तो उसका तरीका दूसरा अलग है. उसके लिए स्माइल फॉर्मूला नहीं, उसके लिए मोबाइल फॉर्मूला कि सर सेल्फी प्लीज. जैसे आप ये सेल्फी या एक फोटो क्लिक की बात करोगे, तो क्या होता है कि आज एक फोटो की बात आती है, फोटो पर मुस्कान आ जाए. जैसे हम उसको बोलते हैं सर कहना है फोटो प्लीज, तो वो चेहरे पर स्माइल ले आए. और मैंने देखा लोगों में ऐसे पेशेंस नहीं है, तो अगर बोलते कि फोटो शूट हो रहा है, आपको एकदम लाइन में खड़ा रहना है और स्माइल करना है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट एडजस्टमेंट टाइम लग रहा है, 3 मिनट तक वो स्माइल ही कर रहे हैं, क्यों पता नहीं कब क्लिक लग जाए. तो पेशेंस प्रोग्रामिंग को हेल्प भी कभी कभी मोबाइल कर सकता है इन अ डिफरेंट वे. तो खुद के लिए स्माइल फैक्टर और दूसरों के लिए मोबाइल फैक्टर से हम एंगर कंट्रोल, इनर डिस्टर्बेंस कंट्रोल, इनर वायलेंस कंट्रोल में भी एक हेल्प और सपोर्ट बन सकती है. तो पहला फॉर्मूला था स्माइल एवरीवन. दूसरी बात जो है वंडर ऑफ वर्ड्स. इसको एक्रोनिम में देखेंगे तो WOW मतलब वाव. WOW वंडर ऑफ वर्ड्स. लेट्स स्पीक अहिंसक वर्ड्स इन आवर लाइफ. वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैब. क्योंकि जो हम शब्द कहते हैं वैसे हमारे भाव बनते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे शब्द निकलते हैं. तो कहते हैं ना कई बार कि यार स्लिप ऑफ टंग, मुंह से निकल गया भाई, मैं सोच तो कुछ और है, और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ निकल रहा है, यहाँ निकलता है वो यहाँ होता है. स्लिप ऑफ टंग का मतलब दिमाग में अचानक एक रैंडम थॉट आ गया, शब्द निकल गया, फिर हम दिमाग को ऑर्गेनाइज करते हैं और शब्द निकल चुके होते, तो हम एक्सक्यूज करते हैं कि स्लिप ऑफ टंग. और क्या कभी स्लिप ऑफ टंग में ऐसा कोई शब्द निकलता है जो आपने कभी सीखा ही ना हो, जो कभी आपने सोचा ही ना हो? कि ऐसा कोई शब्द निकल सकता है कभी? आपको अगर गाली बोलते ही नहीं आता है, तो क्या स्लिप ऑफ टंग में कभी गाली निकल सकती है? शायद नहीं, अगर वो प्रोग्राम ही अंदर ना हो. तो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वे में नहीं और अनऑर्गेनाइज में गलती से निकल गया, उसको हम स्लिप ऑफ टंग कहते हैं. तो हमें क्या करना है, स्लिप ऑफ टंग को रोकने के लिए उस आइडिया को ही स्लिप कर देना है, अलग कर देना है अपने दिमाग से. मतलब हमें ऐसा माहौल बनाना है शब्दों से. कहते हैं शब्द ही तो मंत्र बनते हैं, शब्द ही तो शक्ति. शब्द में ही वशीकरण का पावर. वशीकरण मतलब आप हिप्नोटाइज कर सकते हो शब्दों से. शब्दों से स्वीटनर और मैजिक क्रिएट कर सकते हो. तो हमें कभी एक वंडरफुल वोकैब को वर्क करना है. आज के सेशन में हम कुछ 5 लाइनर्स, कुछ वोकैब की यूज करने जा रहे हैं. पहला है, एक बहन है जो घर में खाना कुकिंग कर रही है. वो क्या कहती है, मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं इसको छील रही हूँ, मैं इसको एकदम फ्राई कर देती हूँ, मैं इसको छोक देती हूँ. ये वर्ड्स आर वेरी कॉमन इन यूज बाय अ वुमन हु इज कुकिंग फूड. इट्स वेरी नॉर्मल फॉर हर. और ये सारी चीजें क्या कह रहे हैं, किसी को छील दिया है, किसी को काट दिया है, किसी को मसल दिया है,
किसी को कुचल दिया है, ये सारे शब्द है वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन को वेव करते हैं, साथ में ले जाते हैं। आप किसी को छील रहे हो, पर वो शब्दों में निकलने से वो भावना में भी छीलने की भावना है। उसकी जगह अगर हम जो शब्द यूज कर सकते हैं वो है, मैं इसको सुधार रही हूँ। सुधार रही हूँ मतलब आई एम गिविंग इट अ शेप, आई एम ऑर्गेनाइजिंग द फूड टू इजीली डाइजेस्ट इट, टू इजीली प्रोसेस इट। क्योंकि हमारा इंटेस्टिनल कनेक्शन को हम देखें, अगर पीछे के रूट्स में जाए हिस्ट्री में, तो पहले कुकिंग प्रोसेस नहीं था। भगवान ऋषभ के पहले कुकिंग प्रोसीजर्स नहीं थे। वहां पे रॉ फूड खाया जाता है, और जैसा ही फ्रूट मिलता है वैसा खा लिया, खत्म। क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट, वेरी पावरफुल। गेहूं भी तो गेहूं सीधे खा लिया, उसको पकाने की बात नहीं थी, जरूरत नहीं थी। गेहूं भी एक्चुअल में नहीं थे, क्योंकि कृषि नहीं थी। तो फ्रूट्स होते थे, बस वो एबंडेंट फ्रूट्स होते थे, नीड कम थी, फीड इजीली होता था, और डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। खाना बहुत कम था, पर अंदर की जो मशीन थी वो दमदार। आज उल्टा हो गया, हम खाने का टाइमिंग हमारा ज्यादा हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई है, वर्क लेस हो गया है, फिजिकल वर्क एकदम नेग्लिजिबल हो गया है, और डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो गया। ये बहुत सारे कारण बने जिससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो है, और इस कारण से कुकिंग की जरूरत पड़ी। तो खाना कुक किया जाने लगा। अब कुक करना है वो एक बात है, वो कुकिंग के लिए हम राइट वर्ड का यूज कर सकते हैं। मैं सब्जी सुधार रही हूँ, मतलब अगर सब्जी को कट नहीं किया गया तो पूरी चीज प्रॉपरली शायद बॉईल नहीं होगी। तो अगर वो कट की हुई है तो उसको हर चीज को प्रॉपरली प्रोसेस करना, मतलब इजी टू डाइजेस्ट बनाना। इट्स कुकिंग इज नॉट फॉर टेस्ट एक्चुअली इट वाज मेंट टू गेट द फूड डाइजेस्टेड प्रॉपरली। It is just for the ease of digestion that we need to chop things or do things, or the things are done that way. तो अगर हम वहां पर शब्द से यूज करते हैं कि हम सब्जी सुधार रहे हैं, वो संस्कृत कर रहे हैं, उसको यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, तो हमने ये वर्ड्स यूज करने से हम इसको डाइजेस्टेबल बना रहे हैं, उसको हम एक्सेप्टेबल बना रहे हैं। तो ये सारी वर्ड्स क्या कह रही है कि वी आर कंज्यूमिंग सम एनर्जी विच इज आवर रिक्वायरमेंट। It's not about killing, it's not about harming others, it is about helping ourselves. तो हार्मिंग और हेल्पिंग चीज प्रोसेस वही है, पर शब्द वहां पे कॉनोटेशन ओरिएंटेशन बदल गया। तो हमें अपनी बात किस तरह से रखनी जो दूसरों पर लोड डालने वाली ना हो, बल्कि दूसरों को या अपने को अपग्रेड या यूजर फ्रेंडली बनाने वाली। पॉइंट वन कि सब्जी सुधार रही है। पॉइंट टू है कि आपको चीज, आप कोई किसी मकान में जाते हो, कोई पूछता है आपका मकान कैसा बना है, आप क्या होगा, अरे क्या लेविश बनाया है, क्या गाड़ी है, एक्सेलेंट, ये तो कुछ स्पेशल है, कुछ हटके है। तो आपने उसकी हिंसा की जो एक्टिविटी है उसको आपने प्रमोट किया। तो अब सामने वाले सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है कि मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, मेरे पास भी फरारी होनी चाहिए, मेरे पास भी ऐसा बंगलो होना चाहिए, सी फेस का ऐसा कुछ मकान होना चाहिए। हम सारा प्रमोट क्या कर रहे हैं अपने शब्दों से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली हम उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारा मेन एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम बदले में क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न ये आता, हम बदले में ये कह सकते हैं कि ये भवन उपयोगी लगता है, ये जो मकान है बहुत अनुकूल है, इट्स लुकिंग यूजर फ्रेंडली, बिकॉज यूजर फ्रेंडली इज द यूज आफ्टर मेकिंग इट। So instead of talking about how it was made is relating to violence, and how it will be used is something non-violence. So we can shift our vocab to one shift to the second, and it will create a different meaning. अगर आपने ऐसी भाषा यूज करना शुरू कर दिया कि साड़ी कैसी है, ये आप पर बहुत सूट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट हर, नॉट द साड़ी। और साड़ी बहुत अच्छी है, मतलब साड़ी की प्रोसेसिंग को आपने किया है, उस प्रोसेसिंग में जो कॉटन को टेयर किया गया है, प्रोसेस करने में कितनी अग्नि जलाई गई है, ट्रांसपोर्टेशन में कितनी हिंसा हुई है, आपने उन सब चीजों को प्रमोट किया। तो प्रमोट वेलबींग, डोंट प्रमोट अनवेलनेस, डोंट प्रमोट वायलेंस थ्रू इवन योर वर्ड्स। चौथी बात है, डोंट यूज एब्यूजिव वोकैब और नेगेटिव एनर्जी वर्ड्स। अब ये जब हमने वायलेंस की बात की, वायलेंस केवल फिजिकल नहीं है, वेलनेस के लिए मेंटल वायलेंस को भी हटाना है। तो मेंटल वायलेंस में हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में उसकी कमियां बताना, ये तो है ही ऐसी, इसका तो दिमाग ही ऐसा है। क्यों भाई, ये बोलने से क्या फायदा हो? नथिंग चेंज एक्चुअली।
nothing was eventually useful for you or others, उसे खाली डैमेज हुआ। तो हमें बिटरनेस क्रिएशन को बंद कर, नेवर यूज अब्यूजिव लैंग्वेज और रॉन्ग लैंग्वेज और टॉन्ट लैंग्वेज, टॉक्सिक लैंग्वेज, डोंट प्रमोट बिटरनेस। तो हमें बिटरनेस की जगह क्या करना है, तो बेटरनेस वाले वर्ड यूज करना है। जैसे एक आदमी बहुत मोटा है, अगर अरे मोटू आ गया, उसको बहुत हर्ट हो रहा है, आपने बोला तुम बहुत हेल्दी हो, मीनिंग वही है, यू वांट टू कन्वे दैट ही इज हेल्दी, मींस कि थोड़ा सा फैट है, थोड़ा ओबीस है, आप यही कहना चाहते हो भले, पर जो वर्ड्स चेंज किए हैं, ही डज नॉट फील हर्ट इनसाइड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यंगस्टर में से बहुत लोग हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उन्हें आपने कुछ ऐसा लिख कर दिया है कि तू बहुत मोटी हो गई है, तेरे को तो कौन पसंद करेगा, और आपने निकल देगा, उसने हैंग कर लिया अपने आप। अब बताइए कि जिम्मेदार कौन है उस वायलेंस? उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, इवन सुसाइड भी कर लिया, ये वो डिप्रेशन में चला गया, उसके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होकर वो बहुत बुरे विचारों में रहता है। उसका जिम्मेदार कौन? वो खुद या उसको वो कहने वाला वो शब्द? हमें सोचना। तो आई थिंक सो बोथ आर देयर। जिसने किया है वो तो गलत रास्ते पर जा ही रहा है, पर जो उसको प्रोवोक कर रहा है उस डायरेक्शन में, knowingly or even unknowingly we comment on others, they are also one of the causes for their suicide, for their bitterness, for their arth dhyan, for their negative mindset, for their inner disturbance and leading to other violence. तो हमें ये भी ध्यान देना कि हमारे शब्द किसी के लिए टॉनिक बन सके तो बहुत अच्छी बात है, न बन सके तो कम से कम टॉक्सिक ना। हम किसी की तारीफ कर सके तो अच्छी बात है, न भी कर सके तो किसी को तकलीफ देने वाली टॉन्ट और टॉक्सिक भाषा को हम न बोले। तो हमें ये प्रयास करना है कि अपनी भाषा को हमें बिटर से बेटर बनाना है। तो हमने अभी तक 4 बातें की है। पहली है खाना बनाते टाइम या जो भी हमारी नीडेड वायलेंस, वहां पे हम वायलेंस की बात की जगह उस नीड की बात को एम्फेसाइज करेंगे। जैसे हम शिफ्ट करेंगे एम्फेसाइज, वी विल लीड फ्रॉम नॉन वायलेंस टू नॉन वायलेंस। सेकंड चीज हमने क्या बात की थी, वो था कि हम शब्दों में और इन चीजों पे ध्यान देंगे। तो हमने इस तरह से 4 बातें अभी तक की हैं जिससे हम अपनी भाषा में सुधार ला सकते हैं कि जितना सुधार उतना उद्धार। जितने हम भाषा में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, भाषा को सरल बनाएंगे, भाषा को सुंदर बनाएंगे, तो भाषा को ऐसी बनाएंगे जो लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करने वाली। तो 5वीं चीज जो है वो आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, एंड दैट आर्ट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। दिल से उसकी तारीफ करनी है, दिखावे वाली नहीं, जो रियल में यू विल सी दैट एवरीवन हैज वन ऑफ द अदर यूनिक क्वालिटीज व्हिच आर एडमायरेबल। जस्ट एडमायर टू इंस्पायर, क्योंकि मैनेजमेंट का फॉर्मूला है एफर्ट्स एप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड, एफर्ट्स एप्रिशिएटेड गेट रिपीटेड। आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता है, 10 बार आप कहते हैं, 1 बार सुनता है। अब एक व्यक्ति सोचता है कि 9 बार नहीं सुना, उसका टेंशन स्ट्रेस में रहता है, तो एंजाइटी के कारण, पैनिक के कारण वो 11th बार वो उस पर शूट आउट कर देता है, शूट एट साइट के मूड पर आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, एग्रेशन में आ जाता है, और वो बिटरनेस का माहौल बनते चल जाता है, डेवलप होता है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है, या वो स्टबर्न बन जाता है बार बार सुनकर आपको, अब आपकी सुनता ही नहीं। पर आपने क्या किया कि उसने एक अच्छा काम किया, 9 गलत काम किए। एक जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ इतनी ज्यादा कर लो कि 9 चीजें साइड हो जाए, दिमाग से भी और उसके लाइफस्टाइल से भी। सुबह उठ के उसने प्रणाम किया, उसको इतना अप्रिशिएट हो, क्या बात है यार, कितनी विनम्रता तुम्हारे अंदर, कितनी मॉडेस्टी है, ऐसा संस्कारी बच्चा कहाँ मिलता है हमें। जैसे आपने इतना उसे कह दिया, देयर विल बी अ चेंज, द शिफ्ट इन द माइंड, एंड यू विल सी द शिफ्ट in your life, in your relation, in your connection, and everything around you will ultimately change. तो हमने आज ये 5 सूत्रों पर थोड़ी सी बात की है, इसको हम जीवन में लाने का विशेष प्रयास, विशेष पुरुषार्थ करें, तो वास्तव में to bring the change, we will be the change. So let's be the change to bring the change in the world, and see you soon with that ever smiling face, with the better well-being words, with a positive mindset and positive through motivating, managing, and leading people to live an enlightened life.
ओम अरहम। मुनिषी के प्रति बड़ी बड़ी बहुत बहुत कृपा करी मुनिषी ने हम पर। मुनिषी ने अभी अपने को आंतरिक हिंसा को समाप्त करने के प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं, जिसमें शब्दों की ग्रामर से हम किस तरह से दूसरों के विचारों पर असर बताया है उन्होंने। और कुकिंग में कहते हैं ना कि वनस्पति में भी भय संज्ञा होती है, तो कुकिंग में भी हम वनस्पति जीवों के प्रति अहिंसा के भाव कैसे ला सकते हैं, मुनिषी ने उनको बताया है। और किस तरह से निषेधात्मक भाषा को अवॉइड करने की बात कही है, एक जोक रूप में ही समझें। एक बात ध्यान में आती है कि अक्सर हम जानते हैं कि जो मामा है, मामा वो हम कहते हैं तो पिताजी के साले साहब हैं वो, लेकिन अगर हम उनको मामा जी ना बुलाकर अगर हमको ये बोल बाप के साले इधर आ, ऑडियो मतलब सिर्फ शब्दों का ही यहाँ पे है तो बाप का साला ही है, लेकिन हम अगर उनको ऐसा बोल दे कि बाप के साले की जगह मामा जी की जगह बाप का साला बोल दे, तो ये निषेधात्मक भाषा जो है हिंसा में घटना घट सकती है। और उन्होंने आखिर में जो बताई कि दूसरों से जो अपेक्षा है हमारी वो पूरी न हो तो किस तरह से उपेक्षा में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर मुनिषी ने बताया कि किस तरह से हम वहां पर भी उनको अप्रिशिएट करें और मानसिक हिंसा से इस तरह से हम बच सकते हैं। मुनिषी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता अपने इस वक्तव्य के लिए। मैं आगे डॉक्टर तृप्ति जैन, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ जैनिज्म, जैन यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु, आई वुड लाइक टू कॉल हर टू एक्सप्रेस हर व्यूज ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड नॉन वायलेंस। डॉक्टर तृप्ति जैन। वंदना करती हूँ महाराज साहब को। आप सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर का पावर दीजिए को होस्ट के। आप को होस्ट है तृप्ति जी, आप कर सकते हैं। नहीं, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है, डिसेबल किया हुआ है। ओके, एक सेकंड में एसपी जैन साहब सुन रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर एसपी जैन, मैं एक मिनट कॉल करता हूँ उनको। तो आज हमने जो डिस्कशन किया, जब तक आप स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शंस पर आगे बढ़ते हैं, किसी के मन में एनी क्विक क्वेश्चन दे कैन रेज फॉर नाउ? इस हिंसा और अहिंसा को लेकर कोई अपना पॉइंट रखना चाहें फ्रॉम द ऑडियंस, एनीवन? हाँ तृप्ति जी, शायद अभी आपको कर दिया है मैंने। शेयर कर पा रहे हैं आप? जी ठीक। शो हो रहा है सर स्क्रीन? हाँ बिल्कुल शो हो रहा है। समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही भागूंगी, बट आई थिंक के चार्ट के थ्रू बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अहिंसा के कई लेवल पे उसको समझाया जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या रहा। तो जब साइकोलॉजी का जब स्टार्टिंग हुई थी, तब साइको वर्ड्स को मीनिंग को जब डिवाइड किया गया, अलग अलग तोड़ा गया, तो उसको सोल वर्ड में ही लिया गया। साइको का अर्थ जो है वो आत्मा के संदर्भ में लिया गया था। फिर इसमें भी कुछ लूप्स आने लगे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जो मीनिंग एक साइकोलॉजी का निकल कर आना चाहिए था या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी, कुछ दार्शनिकों को वो शायद ठीक नहीं लगी। तो सेकेंड लेवल पे उन्होंने कॉन्शियस की, चेतना की डेफिनेशन दी। जब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी तो थर्ड लेवल पे उन्होंने माइंड की डेफिनेशन दी कि जहां मन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वहां पर हम साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और जब इसको भी पूरा नहीं समझा गया तो कुछ दार्शनिकों ने बिहेवियर को लेकर, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर साइकोलॉजी को डिफाइन किया। हम
चारों को लेकर थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। सोल के संदर्भ में अगर हम वायलेंस और नॉन वायलेंस को समझते हैं तो सोल के लेवल पे क्या रीजन होते हैं ऐसे जिससे कि व्यक्ति हिंसा करता है। तो सबसे पहला चीज है कि उसके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं जब वो उदय में आते हैं तो उन उदय में आने के कारण वो हिंसा करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। अगर वहां पर वो कॉन्शियस हो जाता है, वो समझ जाता है कि नहीं ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, वो एक डिफरेंट थिंग हो जाती है। लेकिन हिंसा करने का एक कारण उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, दूसरा कारण उसकी विभाव दशा होती है। जैसा कि कहा है कि आत्मा जो है वो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वही उसका नेचर है, वही उसका स्वभाव है। लेकिन बाहरी विकार जब आते हैं तो आत्मा स्वभाव से विभाव दशा में चली जाती है। उसके कारण जीव जो है, जो व्यक्ति है, वो वायलेंस करने के लिए तत्पर हो जाता है। तीसरा कारण, जैसा कि आचार्यांग सूत्र में कहा हुआ है कि जैसे मेरी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है, या जो एक को जानता है वो सबको जानता है। तो अगर कोई व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करेगा तो वो अपने समान किसी दूसरे को मानेगा ही नहीं, और जब वो नहीं मानेगा तो वो औरों की भी हिंसा करेगा, और औरों की हिंसा करने से पहले वो स्वयं खुद की आत्मा की भी हिंसा करता है। इन कारणों से प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, वापस रीबॉर्न हो जाता है कर्म का, मतलब कर्म उसने किया, उसने हिंसा कर दी तो वो वापस से उसके कर्म जो है बंद हो जाते हैं, वो फिर उदय में आएंगे, ये एक साइकिल बनता चला जाता है। इसके कारण क्या होगा, जब आत्मा विभाव दशा में होती है तो उसका बार बार रीबर्थ होगा, और उस रीबर्थ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जब वो हिंसा करता है तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में चला जाता है। आत्मा जो है वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने लग जाती है, जिसके कारण वापस से और कर्म बंद होते हैं, वापस से आत्मा का विभाव दशा से स्वभाव दशा में आना मुश्किल हो जाता है। तीसरे लेवल पे जब वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, सबको अपने जैसा नहीं मानता, तो इस कंडीशन पे वो हिंसा करने के लिए तत्पर हो जाता है। सॉल्यूशन क्या करें आत्मा के लेवल पे, तो बहुत सुंदर हमारे इसमें दिया फैक्टर दिया है संवर। जहां तक हो सके हम जो हमारे कर्म हैं उनको हम रोकें, हम संवर करें और निर्जरा करें जो हमारे पूर्व में बंधे हुए हैं। जब आत्मा को विभाव दशा से स्वभाव दशा में लाना होगा, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को खत्म करना। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने का सॉल्यूशन जो है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में दिया है। समय के आधार पे मैं डीप में नहीं जा पाऊंगी। देन थर्ड लेवल पे वायलेंस, हिंसा को की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो 9 तत्व दिए हैं उन 9 तत्वों का एक्सेप्टेंस हो, उन पे ट्रस्ट किया जाए, उन पे भरोसा किया जाए। एक श्रद्धा का विषय है, अगर ये करते हैं तो निश्चित ही अगर हम आत्मा के लेवल पे सोचें तो कहीं ना कहीं हम वायलेंस से रुक के नॉन वायलेंस की ओर जा सकते हैं। तृप्ति जी, साइकोलॉजी जी आपका स्लाइड नहीं, स्लाइड आगे मूव नहीं कर रही है। ओ सर अब हो रही है आगे? नहीं, अभी तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। पहले स्क्रीन शेयर वापस कर लीजिए। हाँ सर अब हो रही है। हाँ अब आ रही है। तो ये हमने सोल के लेवल पे समझा। नेक्स्ट जो है कॉन्शियसनेस के लेवल पे सर चेंज हुई? हाँ बिल्कुल हुई। हाँ हुई है, चेंज हुई है जी। अब मनोवैज्ञानिक ने दूसरी जो परिभाषा दी थी वो चेतना के लेवल पे दी थी। तो चेतना हिंसा अहिंसा के तौर पे किस तरह से काम करती है? चेतना के मुख्य रूप से 3 पक्ष बनाए जाए, ज्ञान का, संकल्प का और भाव का। और जैन दर्शन में इसको अगर देखें तो ज्ञान, संकल्प जो है वो कर्म और भाव जो है वो कर्म फल के रूप में आता है। ज्ञान जो है वो एक नॉन वायलेंस पर्सनालिटी, एक अहिंसक
व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें चेतना जागृत होती है। ज्ञान जो है यहाँ सम्यक ज्ञान से संबंधित भी हम ले सकते हैं कि जब व्यक्ति में ज्ञान होता है क्या सही है क्या गलत है, उसमें एक जागरूकता होती है, कॉन्शियसनेस होती है, तो वो एक अहिंसक व्यक्ति की पर्सनालिटी बनती है। दूसरा, संकल्प के लेवल पे देखा जाए तो जो राग द्वेष के कारण जो परिणमन होता है, जो चेंजेस आते हैं, उसके कारण व्यक्ति उन राग द्वेष के परिणमन में हिंसा की एक्टिविटीज करने लग जाता है। और तीसरे लेवल पे जब राग द्वेष किया, उस राग द्वेष में वो कैसा फील होता है, उसको खुशी हुई या उसको दुख हुआ। अगर खुशी हुई तो वो उसको और करने के लिए मोटिवेट होता है, अगर दुख हुआ है तो उस दुख से बाहर निकलने के लिए भी वो हिंसा करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तो इसको करने के पीछे क्या होता है, उसका जो नॉलेज है, मतलब उसको कहीं ना कहीं ये ज्ञान होने लगता है कि मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, इसको वो फील करता है और उस फीलिंग के साथ उसको ज्ञान होता है इस बात का। और जब वो ज्ञान होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो वापस से वो रिएक्टिविटी करता है, वही काम फिर से करने की कोशिश करता है, अगर खुशी हुई तो, और अगर दुख हुआ तो उससे बाहर आने के लिए कोई अदर एक्टिविटीज वो करने लगता है। कारण क्या है चेतना के लेवल पर हिंसा करने के? तो सबसे पहला कारण इसका आता है मिथ्यात्व दृष्टिकोण। व्यक्ति का अगर दृष्टिकोण सही नहीं है तो वो नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। जब वो नेगेटिविटी की ओर जाता है, कहीं ना कहीं ये इंटरनल प्रोसेस है पूरी, कि उसका अगर व्यू गलत हो गया तो उसकी सोच नकारात्मक बन जाएगी। जब सोच नकारात्मक होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेंटल टेंशन की तरफ जाता है। उस टेंशन को कैसे दूर करे, बस उसको उस दुख से बाहर निकलना, उस टेंशन से बाहर निकलना है, तो वो कहीं ना कहीं उसको कलेक्ट करेगा जहां से टेंशन वो खत्म कर सके। और इसके लिए वो ये नहीं सोचेगा कि क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, तो बस उससे बाहर आना है। और जब व्यक्ति टेंशन में तो टेंशन से बाहर आने के लिए उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर वो वायलेंस करते हुए उससे बाहर आने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ उसके अंदर फिर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, वो हीन भावना पैदा हो जाती है जो उसको और ज्यादा वायलेंस की ओर लेकर जाती है। सर स्लाइड चेंज हुई ना? बिहेवियर पे आई है। जी सर, ठीक। तीसरा जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन के रूप में डेफिनेशन दी जाती है वो बिहेवियर को लेकर दी जाती है। तो बिहेवियर को लेकर हम देखें तो क्या ऐसा व्यक्ति में बिहेवियर का क्या कारण है, क्यों व्यक्ति हिंसा करने लग जाता है? तो उसमें बिहेवियर में मूल रूप से जो है वो हम रीजन देखते हैं हेरिडिटी फैक्टर। जैसा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, कभी कभी वो कहते हैं जीन्स वाला, जो तरुण जी ने भी हम पॉइंट रखा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हमारे जनरेशन में चला हुआ आता है वही नेचर कभी कभी हमारे अंदर भी आ जाता है। तो उसके कारण व्यक्ति के बिहेवियर बहुत ही रूड हो जाता है, जिससे कि वो मेंटल लेवल पे खुद की भी हिंसा करता है, दूसरों की भी करता है, और जहां तक हो सके फिजिकल लेवल पे भी करता है। दूसरा है सरकमटेंस, उसकी परिस्थितियां कैसी है। परिस्थिति भी कभी कभी मजबूर कर देती है व्यक्ति को हिंसा करने पर। यहाँ दो व्यूज सामने आते हैं, एक वो हिंसा जहां इच्छा से करता है, खुशी से करता है, दूसरा वो जो मजबूरी में उसको हिंसा करनी पड़ जाती है, वो चाहता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक माँ को अपने बच्चे को रोटी देनी है, वो रो रहा है, तो उस छोटे से बच्चे को रोटी देने के लिए अगर उसको कोई हिंसा करके भी रोटी लानी है तो वहां जजमेंट करना बहुत मुश्किल है कि उसने किस कंडीशंस में, किस सर्कमटेंस में उसने हिंसा की है। तीसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कई एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, हम नेचुरल के थ्रू भी देख सकते हैं और आसपास का जो हमारा एनवायरमेंट होता है हम उसको भी देख सकते हैं, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो। फिर आइडियल, हमारा आइडियल कौन है? हमारे बिहेवियर में हम सोचते हैं मुझे इसके जैसा बनना है, तो हमारा आइडियल कौन है? हमने किसी भगवान को चुना है या फिर हमने किसी शैतान को चुना है? वो भी हमारे बिहेवियर में वायलेंस और नॉन वायलेंस के फैक्टर को लेकर आता है। लाइक प्रिंसिपल,
क्या रूल्स रेगुलेशंस हम लाइफ में फॉलो करते हैं, ये भी हमारे बिहेवियर में वायलेंस और नॉन वायलेंस का एक हिस्सा बनता है। देन इम्पोर्टेंट कंपनी, कैसी संगति हमारी है, उस संगति का भी हमारे बिहेवियर पर, हमारे व्यवहार पर बहुत कुछ असर पड़ता है। देन ये तीनों जो भी थे, लेकिन इन तीनों का अगर जेनिज्म के हिसाब से देखें या फिर साइकोलॉजिक एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क करता है वो मन करता है। तीनों में जो कुछ भी होता है, तो जेनिज्म भी ये मानता है कि अगर आत्मा विभाव दशा में है तो उसका कारण क्या है। तो मन की, वैसे कहा गया है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति जिस ओर होती है उसी ओर हिंसा और अहिंसा का निर्धारण होता है। तो मन इसमें बहुत कुछ काम करता है। जिस तरह से मन के दो भेद किए हैं, द्रव्य मन और भाव मन, उसी प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा बनती है। द्रव्य हिंसा दो ओर जाती है, पर हिंसा पर, मानसिक हिंसा पर, और भाव हिंसा आत्महिंसा की ओर आती है। ये किस तरह से काम करती है? तो मन में क्या चीजें ऐसी है जो कि व्यक्ति को मजबूर करती है? तो मूल रूप से तीन चीजें हैं, डिजायर, एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट। ये तीन चीजें, इसमें भी अटैचमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहां अटैचमेंट होता है वहीं पर डिजायर्स भी आ जाती है और वहीं पर एक्सपेक्टेशंस भी अपनी जगह बना लेता है। इन तीनों के कारण एक टेंशन होता है। इन चारों का बर्थ प्लेस क्या है, कहां पर ये जन्म लेते हैं? क्योंकि यही मेन कारण है आत्मा का विभाव दशा में जाने का, यही कारण है हमारे बिहेवियर को बेकार होने का, यही कारण है हमारी चेतना जो है वो डाउन फ्लो की ओर जाती है, और यही कारण है वायलेंस का। तो मन ऐसी बर्थ प्लेस है जहां पर इनका जन्म होता है, जिसके कारण व्यक्ति में टेंशन आता है। नेक्स्ट, रिजल्ट। तो परहिंसा जो है वो जीव के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। यहाँ मन की स्थिति को मैं एक्सप्लेन करूंगी, ना कि जीव को। जब कोई व्यक्ति एकेंद्रीय जीव की हिंसा करता है, तो एकेंद्रीय जीव क्या करता है, वो ना एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको क्या तकलीफ हुई, और ना ही दिख के आती है उसकी तकलीफ। तो ऐसी स्थिति में जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो एक मानसिकता होती है, वो उसको पूरी तरह फील नहीं कर पाता है कि भाई उसको क्या तकलीफ हुई होगी और क्या नहीं हुई होगी। और इसी के अपोजिट अगर देखें, बेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक अगर जीव की हिंसा करते चले जाएंगे, तो जहां पर क्रूरता, पहले वाले को, एकेंद्रीय जीव को मारने में जितनी क्रूरता की जरूरत नहीं है, उतनी क्रूरता की जरूरत दूसरे से लेकर पांचवें तक को मारने में होती है। तो व्यक्ति की मनोस्थिति कितनी जटिल हो जाती है कि वो उसके अंदर कितनी क्रूरता चाहिए। जैसे जैसे इंद्रिय का टारगेट बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी क्रूरता की भी कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी, और कषाय भाव भी उत्पन्न होता चला जाएगा। सर, मेरे पास कितना टाइम बचा है? अब आप थोड़ा जल्दी कर लें। ठीक सर। इसी तरह से मानसिक हिंसा भी है और आत्महिंसा भी है, कि ये उनके रिजल्ट है, उनका कारण है। देन नेक्स्ट, प्रोसेस क्या है मन की इस तरह से होने की? तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कुछ आता है, लालच, मुझे कुछ चाहिए, फिर उसका वो जजमेंट करता है अंदर ही अंदर। हिंसा बाहर तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले वो मेंटल लेवल पे ही काम करती है। फिर वो जजमेंट करता है कि वो कैसे करे, ये उसकी नीड है या उसको किसी भी कॉस्ट पे वो चाहिए। वो करने के लिए वो प्लानिंग करता है, एंड प्लानिंग के बाद में उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज कर देता है, और वो वायलेंस की ओर बढ़ जाती है। ये कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट, इस पे जो है वो आप सब देख सकते हैं कि मन में ये चीजें होती है, ये कारण है। दूसरे जो पॉइंट है उसका प्रॉब्लम है, मतलब उन कारणों के कारण व्यक्ति में क्या क्या पनपता है और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये थर्ड रो में इसको सेट किया हुआ है। सिर्फ एक को लेती हूं कि जब लोभ आता है तो व्यक्ति में अधिकार की मनोवृत्ति जड़ती है, और इसका सॉल्यूशन सेटिस्फेक्शन दिया गया है। इसी के साथ में अहिंसा को आगम के अनुसार भी अगर पूरा समझें तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेकर कहा गया है। जहां पर समता भाव और संयम आ जाएगा, वहां पर अहिंसा अपना स्थान बना लेती है। ये कुछ आगम के रेफरेंस हैं। वैसे तो हर स्लाइड से मनोवैज्ञानिकों ने जितना लिखा है, हर आगम में उनके पूरे हर एक रेफरेंस मिलते हैं कि ये बात
कही जाती है, मानी जाती है। इसी के साथ में आप सबके अंदर विराजित परमात्मा को मेरा शत शत वंदन। थैंक यू। जय जिनेंद्र। डॉक्टर तृप्ति जैन ने बहुत ही सुंदर तरीके से और नए तरीके से सॉल के स्तर पर, चेतना के स्तर पर और बिहेवियरल एस्पेक्ट से हिंसा के कारण और उसके सॉल्यूशंस बताए हैं। किस तरह से वो आंतरिक स्तर पर घट रही है, किस तरह से वो कर्म साइकिल का एक हिस्सा है। डॉक्टर तृप्ति जैन के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने एक नए एस्पेक्ट को आयाम दिया है यहाँ पर। मैं आगे के लिए अभी डॉक्टर आशीषा पारिक, जो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स अहमदाबाद, आजकल आप देखते हैं कि यूक्रेन, अफगानिस्तान, पीछे में इराक, सीरिया और भी बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। तो वर्ल्ड सिनेरियो हिंसा और नॉन हिंसा में कैसा है? आई वुड लाइक टू कॉल आशीषा पारिक ऑन करंट वर्ल्ड सिनेरियो ऑफ नॉन वायलेंस। आशीषा जी। जय जिनेंद्र सभी को। और आगे के वक्ताओं ने मेरा काम बहुत आसान कर लिया है, तो उन लोगों का स्पेशल बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे हिंसा को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहेगी। शास्त्र का भी बहुत सारा रेफरेंस दे दिया है, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयन्तु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोक। मैत्री, मैं क्या स्लाइड शेयर कर सकती हूँ सर? बिल्कुल, स्क्रीन शेयर तरुण जी, आशीषा जी को तो स्क्रीन शेयर करवा दीजिए। आशीषा जी ऑलरेडी को होस्ट है। नहीं, पर डिसेबल आ रहा है। अच्छा, ओके, सॉरी, फिर से एक सेकंड आप। आशीषा जी 1 मिनट थोड़ा। जी आशीषा जी, अभी कर लीजिए आप। शेयर कर पा रहे हैं आशीषा जी? हाँ, कर पा रही हूँ। आपको दिख रहा है ना सर? नहीं, अभी नहीं आया, अभी आने का है। नहीं, अभी नहीं आया। जस्ट मिनट। नाउ अब आ गया। ओके, थैंक यू सर। तो ज्ञान और अपना ज्ञान के साथ साथ अवेयरनेस को बढ़ाना कैसे, उसके लिए हम आज बात करेंगे। और मेरा ज्यादा फोकस पॉजिटिव साइड पे रहेगा कि अभी किस तरह से हम उसको एडमायर कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो लोग नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं और अपना जी जान लगा के प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। यस सर। हाँ, सो मेरे हिसाब से नॉन वायलेंस क्या है? नॉन वायलेंस इज रिस्टोरिंग ऑर्डरलीनेस इन द यूनिवर्स। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो फ्रेंडलीनेस, ग्रेटिट्यूड, एडमायरेशन, कंपैशन, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड नेक्स्ट न्यूट्रल एटीट्यूड। नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हम कह सकते हैं इज एब्स्टेनिंग और फ्री फ्रॉम वायलेंस, doing any activities resulting to reducing harms to any living being or encouraging someone to do so mentally, verbally or physically is non-violence. Conservation of biosphere is a demand of time and minimum intervention in the nature is again. So what are the virtues we require? So here I have listed a few virtues. I'm not going through it. I think we all know about it. But according to principle of entanglement, one cannot hurt others without hurting himself. So, according to Jain philosophy, non-violence is practiced by current world scenario of just a minute, मेरे यहाँ पे हाँ, तो वायलेंस का क्या सीन? हाँ, ओके, वायलेंस का क्या सीन है हम सबको पता है, तो उसके लिए हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूंगी
कि जल, जंगल, जीवन, जमीन, जानवर, उन सब का ख्याल रखना, वो ही हमारे लिए नॉन वायलेंस रहेगा। उससे आके हम और कुछ कहना चाहेंगे नहीं। मेरी स्लाइड आगे नहीं, वर्ड सिनेरियो वायलेंस आ रही है। हाँ सर, हाँ वही यहाँ से इंक्रीज हुआ है, जस्ट अ मिनट सर। तो नॉन वायलेंस किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हाँ ये 5वां नंबर है। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैंने स्लाइड से बंद कर दिया, सीधा प्रेजेंटेशन पे आ गई हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस किस तरह से की जा सकती है, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कोई ग्रुप के साथ कर सकते हैं, या गवर्नमेंट या कोई बड़ी अथॉरिटीज के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिस्टम फ्रेम करना पड़ेगा। तो किस तरह से बाकी के लोगों ने किया है और कौन किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ये साधु भगवंत है, उन्होंने इतना सारा काम अकेले ने खुद ने तो प्रैक्टिस किया है, उनके साथ साथ इतना सारा काम भी किया है, इतनी प्रैक्टिस भी की, सिस्टम भी डेवलप किए, तो वो भी हो सकता है। और बाय फ्रेमिंग सिस्टम परमानेंटली लाइक UN, NPT इस तरह से, या पेटा, इस तरह की कोई भी सिस्टम्स हम बना के और उसमें जुड़ के भी उनके साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से तो सो टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिविजुअली हम अगर करना चाहे तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से कर सकते हैं, इंडिविजुअली या विद द मिनिमम पीपल इन द ग्रुप, या इस तरह से। तो पहले तो हम सर्वे करेंगे, स्टेटिस्टिकल सर्वे हमें हेल्प कर सकता है कि किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ वेजिटेरियनिज्म एडप्ट करने के रीजन बताए हैं। इस तरह से एनवायरमेंट को CO2 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से बढ़ता है ईयर बाय ईयर, ये दोनों बता के इतना ट्राई किया है कि हम अगर ये चीजों को फोकस करके हम आगे जाए और अवेयरनेस बढ़ाए तो काफी सारी चीजें हो सकती है। जिस तरह से तब नेचुरल कैलामिटी या पेंडेमिक्स है, ऐसा कोई भी सिचुएशन है, तो उस टाइम तो हमें सिस्टम्स की जरूरत होती है और वो सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करती भी है और करनी भी चाहिए, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ भी सकते हैं। पर साथ साथ जननी सुरक्षा स्कीम, और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये 2 स्कीम की वजह से मदर मोर्टालिटी रेट में कितना फर्क आया। तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके भी किस तरह से पॉलिसी मेकिंग में काम करके या इसमें गाइडेंस हमारी ओर से हो जाए तो किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अल्पेश गांधी, उन्होंने कितना काम किया वो उसकी बात कर रही हूँ। जननी सुरक्षा स्कीम और हाई डिपेंडेंसी केयर यूनिट, इन दोनों को मिला के उन्होंने मदर मोर्टालिटी रेट में जो 400 आउट ऑफ 1 लाख था उसको 109 आउट ऑफ 1 लाख करवाया, और यहाँ तक कि 10 स्टेट में तो अभी 70 ऑन 1 लाख हो गया। ऑलमोस्ट 50 to 60 प्रेग्नेंट वीमेन जो क्रिटिकल कंडीशन में होती थी उनको बचाने का हमें बहुत बहुत मतलब सहारा मिल गया। सो इस तरह से भी हम इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। तो हमें हमारे अंदर के रहे पोटेंशियल को जगाना है, और किस तरह से लोग कर रहे हैं उसको मैं अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सब बता रही हूँ। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स। सो गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स को मिलके भी इस तरह से काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअली कर रहे हैं या ग्रुप में कर रहे हैं। जैसे इन मतलब जब भी इमरजेंसी आती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो ये नंबर्स अगर हमें पता है और हमारे पास अगर मोबाइल है तो हम किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो है आज का कि लोग एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हैं, और ये मोबाइल की हेल्प है। सो टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से उपयोग हो रहा है। nari.com करके एक वेबसाइट है, उसमें भी मतलब काफी सारा गाइडेंस दिया गया है कि अगर विमेन या उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपन बात करें तो एब्यूजिंग, उन सब के लिए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। काफी सारे लोगों ने अलग अलग से मोबाइल ऐप भी बनाई है, तो वो भी हमें अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकती है। जैसे डेली वायलेंस काउंटर है, वायलेंस फ्री वर्ल्ड है, एनिमल राइट्स की टेक्स्ट बुक मिल सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है। तो ये सब काम भी हुआ है, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। थोड़ा सा अपने पास जो लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम है उसमें कहीं कहीं बदलाव की जरूरत है, पर
जब हम पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे या कहीं आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें भी कर पाएंगे। तो ये जस्ट गाइडलाइन के लिए था और कुछ नहीं है यहाँ। रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज, तो उसके लिए WOTR, स्वदेश, भूमि, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, उन लोगों ने इतना सारा काम किया है। और रिवाइव लेक्स, रेली रिवर प्रोजेक्ट्स, उन सबसे मिलियंस ऑफ पीपल इनके साथ जुड़े हैं और अवेयरनेस भी बढ़ी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हम आगे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन और वाटर में हम जितना कचरा डालते हैं उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। मैं वायलेंस पे ज्यादा तो नहीं बताना चाहूंगी, उसके बावजूद भी थोड़ा सा ये जरूरी था इसलिए मैं बताती हूँ कि बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो विनित मतलब पानी के नीचे पल रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50 to 80% प्रजातियां इस तरह की हैं कि जो पानी के नीचे पल रही है। तो प्लास्टिक, डेडली माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन फ्रेश स्नो इन दैट फॉल इन Antarctica. The ingestion of and suffocation and entanglement of marine species, और प्लास्टिक की वजह से क्या क्या हो रहा है मैंने यहाँ बताया कि जो सी बर्ड्स, वेल्स, फिश, टर्टल्स वो मिस्टेक करते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को वो अपना जैसे भोजन है उस तरह से उसको लेने का ट्राई करते हैं। एंड देन स्टारवेशन से वो मर जाते हैं, उनका स्टमक खराब हो जाता है मतलब। तो वो जो है, तो उसके सामने एक प्लास्टिक डेब्रिस को दूर करने का प्लास्टिक ईटिंग शार्क ऐसा ड्रोन इस तरह का एक यूके कोस्टलाइन पे प्रोजेक्ट शूट किया गया है। तो वो बहुत सारी प्रजातियों को बचाने के लिए हेल्पफुल है। हम भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट में क्या जुड़ सकते हैं या तो उनको अप्रिशिएट करके आगे जा सकते हैं। इसी तरह से इंडिया में भी जंगल को बचाने का, जैसे हमें पता है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से ऑलमोस्ट काफी मतलब जितनी प्रजातियां या जितने एनिमल को हंटिंग नहीं किया जाता है या स्लॉटर नहीं की जाता है, उससे ज्यादा तो सिर्फ हैबिटेट के लॉस की वजह से हम इतने एनिमल का तो लॉस कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्रीचर्स, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, एवरीथिंग। सो साथ साथ पेड़ पौधों को भी मतलब काफी सारा नुकसान हो रहा है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके भी इतना बताना चाहूंगी कि द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, which is no NGO and operating to conserve India's threatened and endangered wildlife, habitat and natural resources। तो ये है इंडिविजुअल लेवल पे जैसे बताना चाहे कि डिजिटल बिलिंग, मैसेजिंग एंड इन्विटेशन सिस्टम्स सेव्स पेपर एंड एज अ रिजल्ट वाटर एंड फॉरेस्ट। तो वो भी है कि अच्छे से काम हो भी रहा है और ये थोड़ा सा बताना था इसलिए जरूरी था कि क्या क्या किस तरह से हो सकता है। सेम वे water, land, soil, forest problems and biodiversity। तो वहाँ पे भी मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है we people are very well known to increase dumping on land by our organic or inorganic waste। The organization like NSWAI or Earth5R are working on waste management to respect nature for providing resources by reuse, revival of resources, by restoring and finally by recycling the waste। So थोड़ा सा यहाँ पेस्टिसाइड का यूज जो है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी 4000 में कैंसर वगैरह की तो बात बाद में करूंगी, पर कंटेमिनेशन की वजह से 6 million to 14 million ऑफ फिश डेथ एंड 67 million ऑफ बर्ड्स डेथ वो नोटिस किया गया है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू यूज प्लास्टिक। This is my humble request। Air pollution is again a big problem. Here I have mentioned about some industries and their share of greenhouse gases. Some cities are providing footpaths and track for bicycling or to encourage walkers and riders. I would like to appreciate them. Some companies who have adopted alternate day work from home system and online meeting to reduce electricity and fuel requirement. That is again admirable things। तरुण जी ने एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगता है कि मैं वॉर के लिए ज्यादा बात बताऊंगी, पर मुझे लगता है कि वॉर के बारे में इतना सुन के सब थक चुके हैं कि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। पर वॉर रजिस्टर्स जो है एक इंटरनेशनल यूनिट है
ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि सभी प्रश्नों का हल निकल सकता है विदाउट एनी मिलिट्री एक्शंस। तो और जैनिज्म के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब माना जाता है कि चेंजिंग समवन फ्रॉम creating and spreading threat or fear among genders, religions or cultures and doing violence on the name of them will be considered as a great non-violence। मतलब कोई भी ये सब कर रहा है उनको चेंज कर दो तो that will be a great non-violence। So keep calm and stop using weapons। Okay, so I have designed a mobile application to know the individual's violence burden and the disturbance created to nature with the title Daily Violence Counter, which is a brainchild of Dr. Narendra Bhandari ji from Jain Academy of Scholars. It makes one aware of his awareness about his violence burden through his activities and how he minimizes it without much effort. Here we consider violence count from daily routine, occupational violence count, and occasional violence count. We have tried to encourage users to live in harmony with nature and others by doing some violence reducing activities. तो डेली वायलेंस काउंट क्या कर सकता है, तो किस तरह से यूज किया जाता है, हाउ टू मैनेज किस तरह से हम डेली वायलेंस अपना अकाउंट जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो रिड्यूस योर वायलेंस शेयर ऑफ वायलेंस विदाउट डिस्कम्फर्ट योरसेल्फ। सबसे पहला तो हम जिस तरह से जी रहे हैं ऐसे ही जीना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, तो उसके लिए भी उसमें गाइडेंस दिया जाता है, आपको रहते रहते चेंजेस करवाया जाता है आपकी लाइफस्टाइल में। टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस दैट वन पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस, protect present from catastrophic effect. Your little effort can save humanity and the ecosystem from collapse। तो ये पोटेंशियल आपके अंदर है, वो जगाया जाता है और आपको रहते रहते उस लाइफस्टाइल में गाइड किया जाता है। तो हमने ऑब्जर्व भी किया है, काफी सारे हमें इस तरह के मिला है कि जिसने ये ऐप डाउनलोड किया हो और उसके बाद रहते रहते उनके लाइफ में काफी सारा चेंजेस भी आता है और नेचर के साथ हार्मनी से रहते हैं। नॉन वायलेंस बाय मिनिमाइजिंग कंजम्पशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स आर द बेसिस ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ हमने भाव हिंसा को भी इतना ही कंसिडर किया है जितना हमने द्रव्य हिंसा को कवर किया है। सजेशंस ऑफ वायलेंस रिड्यूसर्स आर टू कॉम्पेंसेट। हमने जो सजेशन दिए हैं वो किस तरह से, तो वायलेंस रिड्यूसर का भी हमने सजेशंस दिए हैं, तो वो क्यों है, to compensate the harmful activities performed and to adapt gradual change with awareness। so awareness के साथ साथ हम किस तरह से हम ये हमारा वायलेंस काउंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी भी बात बताई गई है। I request all of you to, हाँ सर बस हो गया सर। I request all of you to download this application from the Google Play Store. Give your valuable responses. Due to limitation of time and my first choice to appreciate the one who are working day and night for the environment, creatures, forest, society, for this holy cause, I have covered these many subjects. I have not included any unjust practices of non-violence in current scenario. Thanks a lot to all of you for believing me and providing me an opportunity to share my views on this particular subject. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आशीषा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, आई थिंक सूक्ष्म अध्ययन, सभी ये मानेंगे कि बड़े ही सूक्ष्म अध्ययन का आपने जो प्रेजेंटेशन किया है, जिसमें आंतरिक अहिंसा की पूर्व तैयारी और व्यवहारिक अहिंसा में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या हिंसा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या पॉलिसी मेकर्स हो, या अपने टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज किया जाता है, फैमिली हिंसा में किस तरह से इसके सॉल्यूशंस हैं, लीगल लॉज किस तरह से अहिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं, या अपने मनोरंजन के साधनों में किस तरह से स्पीसीज को, जो बहुत सारी स्पीसीज है, उनके प्रति हिंसा के कारणों को बताया है, किस तरह से बहुत सारे संगठन जो हैं अहिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने जो सबसे अच्छी बात बताई, आई थिंक वो सभी इससे जागरूक होना पसंद करेंगे, डेली वायलेंस काउंट।
वो किस तरह से आप डेली वायलेंस काउंट को अपने आप को उसमें जागरूक रखिए। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रति। मैं अभी डॉक्टर प्रताप संचेती से कहूंगा कि वो आगे का सेशन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो मैं सभी स्पीकर्स को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है। इनफैक्ट इट हैज रेज्ड माय कॉन्फिडेंस and my conviction that younger generation has got a bigger treasure of knowledge and better way of expression in the time allotted to them. It's a really hard knowing to me. You have given us one example: less you speak, more they listen and more they learn. That's it. Rather than going unlimited time and unlimited words, it's whether you can call it as a word hinsa, that's a different issue. So you have told us that we have to speak less to be listened more and to be understood more. Right now, which I have come to conclusion that the hinsa at individual level mentioned in our late ancient text, man, vachan and kaya. In fact, it is beautifully explained by all of us, all of you, that man is the first one. The second thing is the vachan. Kaya comes the last. So, and what we are doing is, we are concentrating, demonstrating, I'm putting word demonstrating on the kaya. And we are not worried about the man or the vachan. So we should concentrate more on that one. All the speakers have given us a very beautiful insight of the whole issues. First, I will invite two speakers from the panel, and then I'll go into the question and answers. First, Dr. S.P. Jansab, are you, please, and after that, I'll request Dr. Narendra Bhandari to give his views on the subject. Dr. S.P. Jansab, please unmute yourself. हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छा जो है आपने जो है टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा रखा, और प्रश्न तो क्या है मेरे पास, ऐसा सबने बहुत अच्छा बोला, और बस समय की बंदिश को देखते हुए यदि आप अनुमति दें तो मैं 2 मिनट बोलूं, वरना आप 3 से 5 मिनट आप अपने विचार जरूर बताएं। वैसे तो देखिए द्रौपदी जी का बहुत अच्छा मुझे समझ में आया। इन्होंने जो है अहिंसा के जो भेद प्रभेद भी बताए थे, और इसी क्रम में मैं वही बात ज्यादा विस्तृत नई बात तो आने वाली नहीं है क्योंकि सब लगभग हो चुका, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया प्रमेय होगा। तो हिंसा के 2 प्रकार भी हैं, 3 प्रकार भी हैं और 4 प्रकार भी हैं। हिंसा के 2 प्रकार यदि देखते हैं तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है। 3 प्रकार देखते हैं तो मानसिक, वैश्विक और कायिक की हिंसा है, और 4 प्रकार देखते हैं तो संकल्पी, विरोधी, आरंभी और उद्योगी हिंसा। ये जो प्रकार है मुख्य रूप से, इनमें से दरअसल जो पहला वाला प्रकार है भाव हिंसा, 2 प्रकारों में से पहला भाव हिंसा ले लेंगे, 3 प्रकार के में से पहला मानसिक हिंसा ले लेंगे, और 4 प्रकारों में से पहला संकल्प हिंसा ले लेंगे। ये जो पहले 3 जो बताए मैंने, ये है सबसे खतरनाक। यहीं से हिंसा की उत्पत्ति होती है, और हिंसा की जहां से उत्पत्ति होती है पहले वहां से हमको रोकना चाहिए, क्योंकि जो चीज जहां से उत्पन्न होती है उसका निवारण भी वहीं से होता है। ये बात है। दूसरी बात क्या होती है कि हिंसा अहिंसा क्या है, इसके बारे में उपदेश की बात है ये कि तुम हिंसा मत करो। हिंसा के बारे में जैन ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र का, 10वीं शताब्दी में लिखा गया। उसमें हिंसा और अहिंसा की इतनी सुंदर व्याख्या है जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं बताता हूँ, उसका एक श्लोक है, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति विनागमस्य संक्षेप। अप्रादुर्भाव खलु कि यदि आत्मा में राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी अहिंसा है, और राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं तो सबसे बड़ी हिंसा है। सिर्फ एक ही ये सीधी सी परिभाषा है। हमको लगेगा इसमें ऐसी कौन सी नई बात है, हम तो आज तक ये सुनते आए कि दूसरों को कष्ट मत दो, पीड़ा मत दो, इसी का नाम अहिंसा है।
यही सुनते आए हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है ये बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक परिभाषा है, जहाँ से विविध धर्म दर्शनों की परिभाषाएं समाप्त होती है, वहां से जैन दर्शन की परिभाषा शुरू होती है। जैन दर्शन कहता है कि दूसरों को पीड़ा देना वो तो हिंसा है ही, लेकिन स्वयं अपनी आत्मा को कष्ट देना वो भी हिंसा है। आज तक हमने अनादि काल से अपनी आत्मा को बहुत कष्ट दिए हैं। 4 गति 84 लाख योनियों की सैर करवाई है, अपने आत्मा की कदर नहीं की, हमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और यही सबसे बड़ी हिंसा है। ऐसी परिभाषा एक बात तो ये हुई। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब तक मन में हिंसा उत्पन्न हो गई तो बाहर में हिंसा अपने आप हो जाती है। उसके लिए आयुध अस्त्र शस्त्र किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपने सबने सुनी होगी कहानी कि अकबर ने पूछा बीरबल को, बताओ सबसे बड़ा हथियार क्या, अस्त्र शस्त्र क्या? तो उसने कहा समय आने पे बताऊंगा। और एक दिन शाम को जब वो सैर करने निकले, दूर जंगल में गए तो एक हाथी उनकी ओर दौड़ा दौड़ा चला आ रहा। तो क्या किया, तुरंत निहत्थे थे दोनों, तुरंत जो है वहीं से पास में एक कुत्ता गुजर रहा था, तो कुत्ते को उठाया बीरबल ने कुत्ते को उठाया, उठा के घुमा के और हाथी के ऊपर फेंक दिया। हाथी के मस्तक पर कुत्ता जाके गिरा तो उसकी चोट से हाथी दिशा बदल कर चल दिया। तब अकबर से बीरबल ने कहा, देखो अस्त्र शस्त्र वो होते जो वक्त पे काम आ जाए। यहाँ पर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, एक प्राणी था। कहते हैं भाव शस्त्र सबसे बड़े होते हैं, भाव शस्त्र सबसे बड़े होते हैं। और जब भाव शस्त्रों की उत्पत्ति होती है तो बाहर में शस्त्र अपने आप आ जाते हैं। आज हमको निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, डिजार्मामेंट पर बहुत बल दिया जाता है। अस्त्र शस्त्र इनको बंद करने से काम नहीं चलेगा। आप सोचें कि हम नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, आयुधशाला नहीं होगी, अरे कितना भी नहीं हो, लेकिन हमारे मन में यदि हिंसा उत्पन्न होती है तो बाहर में कहीं ना कहीं प्रकट जरूर हो जाती है। इसलिए हमको यदि हिंसा का निवारण करना है तो अपने अंतर मन में करना पड़ेगा। ये यहाँ से है मेन बात। और दूसरी बात क्या है, एक और भी खास बात जो आचार्य अमृतचंद्र ने कही है, वो ये कही है कि ये जो 5 पाप है ना, ये तो हमने आपको समझाने के लिए डिटेल में बताए हैं। ये दरअसल 5 पाप है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही है। एक हिंसा में पूरे 5 पाप समाहित हो जाते हैं और एक अहिंसा में 5 व्रत समाहित हो जाते हैं। कैसे कि जब हम झूठ बोलते हैं तो किसी को कष्ट होता है कि नहीं होता, चोरी करते हैं तो कष्ट होता है कि नहीं होता, कि बस कष्ट देना ही तो हिंसा है। तो झूठ बोलेंगे तो भी हिंसा होगी, चोरी करेंगे तो भी हिंसा होगी। तो कह रहे पूरे 5 पाप हिंसा है और 5 ही व्रत अहिंसा है, एक में ही समाहित हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ये तो अतियोक्ति हो गई और मैं अपनी ओर से तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लग सकता है, लेकिन एक लॉजिक देता हूँ। आपने ये तो सुना होगा कि पहले तीर्थंकर के शिष्य जो है बहुत ही सरल थे और अंतिम तीर्थंकर के शिष्य जो है वक्र और जड़ स्तुति के, है ना। 20 के 22 तीर्थंकर जो थे बीच वाले मध्य वाले, उनके शिष्य बड़े समझदार थे, इशारे में समझ जाते थे, इसलिए उनको ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं थी। और कहते हैं कि पार्श्वनाथ के समय तक 4 ही व्रत बताए जाते थे। चातुर्याम धर्म के नाम से जानते हैं ना पार्श्वनाथ के धर्म को, चातुर्याम, यम माने व्रत, चतुर्याम। तो 4 व्रत, 4 के पहले धीरे धीरे 3 भी रहे होंगे, 2 भी रहे होंगे। कहने का अर्थ ये है कि एक अहिंसा में सारे व्रत समाहित हो जाते हैं और एक, हाँ पूछिए तृप्ति जी, पूछिए जी। हाँ पूछिए, अनम्यूट होकर। मैं कहना चाहती हूँ कि आपने आगम के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, तो मैं सभी से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। साइकोलॉजिस्ट की जितनी भी बुक्स पढ़ी, जितनी भी सब्जेक्ट के लिए, और फिर आगम उनको भी देखा। सर सॉरी सुनाई नहीं पड़ा। जितने भी आगम देखे, कोई आगम ऐसा नहीं है जहां पर हिंसा को कारण और रीजन नहीं दिए हैं, और जितने कारण रीजन दिए सब दिया है व्यक्ति दुख में है और हिंसा कर रहा है। तो आपकी है ना, मेरे को आधा पूर्वार्ध की बात तो समझ में आई, लेकिन बाद का क्या कहा वो बीच में आवाज ब्रेक हो गई है। कोई अन्य लोग कोई क्या कहना चाहते हैं, आप कोई बता सकते हैं? तो कोई भी अन्य व्यक्ति, हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, तो कोई अन्य जन वो क्या कहना चाहते, मेरे सॉरी मैं सुन नहीं पाया।
क्योंकि वो आवाज ब्रेक हो गई है बीच में से। ये तो कह रहे थे कि अन्य आगमों सर, में, मैं सिर्फ इतना कह रही थी हाँ, कि आपने जितने भी आगम मैंने, तो मैं बस इतना कह रही थी कि मैंने जब साइड किया ना, तो आगम के रेफरेंस लेना इतना मुश्किल, क्योंकि कोई आगम ऐसा नहीं है जहां पर हिंसा और अहिंसा की बात को नहीं रखा है और मूल रूप से मन को दिया कि दुख वही है और उसी के कारण हिंसा है। हाँ, सब यही कह रहे हैं ना, सभी आगमों में एक आगम का रेफरेंस ही नहीं दे सकते। हाँ, सब आगमों की बात कह रहे हैं ना, सब आगमों में यही मैं सुन रहा हूँ, जहाँ तक ठीक सुन रहा हूँ गलत सुन रहा हूँ पता नहीं, मेरे को यही समझ में आ रही है कि सभी आगमों में है। इस बारे में एक और बात कह देता हूँ, आपके प्रश्न से याद आ गया मेरे को कि ये जो हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे जैन आगमों का है ही। आज तक हम कहते चले जा रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, हालांकि हमें कोई आपत्ति नहीं है उसको अपनाने में, क्योंकि जो सत्य है वो मेरा, ऐसा नहीं है कि मेरा है वो सत्य। समझना, महावीर ने कहा कि जो मेरा वो खरा, ऐसा नहीं, जो खरा सो मेरा। तो इसलिए अहिंसा परमो धर्म है, ये जो सेंटेंस हमको मिलता है, ये देखा जाए तो भागवत पुराण में आता है और वो वहां का है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं। जैन ग्रंथों में, जैन आगमों में ये सेंटेंस कहीं मिला ही नहीं। तो इस तरह से ये जो बात है अहिंसा की, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, अन्य कई दर्शन ऐसे हैं जिनमें अहिंसा की बातें सब में लगभग है, लेकिन उनके यहाँ पर कहीं कहीं पूर्वापर विरोध आ जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई आलोचना नहीं करता लेकिन उदाहरण देता हूँ। वैदिक मत में कहा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये कहा। एक जगह तो कहते हैं कि अहिंसा से रहो, किसी प्राणी की हत्या मत करो, और दूसरी जगह कह रहे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो ये क्या चक्कर है? हमारे जैनाचार्य कह रहे हैं आप धर्म क्षेत्र में करें हिंसा या कर्म क्षेत्र में करें, हिंसा तो हिंसा ही रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये सभी जगह पर अहिंसा की बातें बहुत है, लेकिन जो जितनी गहरी बात हम जैन आगमों में हमें प्राप्त होती है, वो ऐसा नहीं है कि हम जैन हैं इसलिए जैनों को हम सब्जेक्टिविटी बहुत हो रही है, ऐसी बात नहीं है। परस्पर विविध धर्म दर्शनों का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये बात बड़ी आसानी से हमारी समझ में आ जाती है। तो इस तरह से बातें तो काफी है, अपना समय भी बढ़ रहा है, इसलिए इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी जैन साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विवेचना की। अब मैं सभी दर्शक महोदयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने क्वेश्चंस, हमारे यहाँ वर्षा जी नहीं है अभी, वो कुछ कार्यक्रम से बाहर निकली हैं, बाकी सभी चारों अवेलेबल हैं। आप अपना क्वेश्चंस या कोई विचार हो तो जरूर बताएं। कोई शंका समाधान या कोई विचार? डॉक्टर नरेंद्र जी अभी अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट उनसे रिक्वेस्ट करता। सर मेरा एक क्वेश्चन आता है, ऑल्दो कोई और भी मतलब इस पे चिंतन किया जा सकता है, मर्सी किलिंग और आमरण अनशन, जो जैनिज्म में आमरण अनशन है, और आजकल ग्लोबली मर्सी किलिंग का भी, शायद इंडिया में तो अभी लीगली उसको शायद मुझे ध्यान में नहीं आता है लोग किया या नहीं किया, पर मर्सी किलिंग और मर्सी किलिंग को कैसे समझे, इसको हिंसा और अहिंसा? तृप्ति जी आप बताना चाहेंगे? हाँ बताइए। सर मैं बताना ट्राई करूं? हाँ बताइए। दया, करुणा और जयना 3 अलग अलग शब्द शास्त्र में दिए गए हैं। दया जो है उसको हम सिंपैथी या मर्सी इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जबकि करुणा है वो कंपेशन है, और जयना है वो मतलब किसको आप हिंसा करे हो उसको आप देखो, बाकी के कितने लोगों को बचा सकते हो, आपका फोकस बचाने पे ज्यादा रहना चाहिए, वो है वो जयना है। तो जैसे मुनिश्री ने अभी आज बताया था कि सब्जी आप सुधार रहे हो ऐसा कहो, वहां आपको पता है कि एक नींबू काट रहे हो, तो नींबू काटने के बीच टाइम में आपका ध्यान रहेगा कि अंदर रहे हुए बीज को मुझे यूज नहीं करना है, तो उसको किस तरह से फिर बचा के उसका मतलब उसको सुधारूं। तो वो जो है
वो आपका ध्यान जैना पे चला जाता है। तो दया, करुणा और जैना 3 शब्द अलग अलग है। आपने जो बोला वहां पे मर्सी किलिंग जो है, वहां हम अपने करीबी रिश्तेदार जो है या कोई भी है उसको हम पीड़ते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम मर्सी किलिंग के लिए एप्लीकेशन देते हैं। जबकि जैन शासन ऐसा कहता है कि कितना भी हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको समता और समाधि, वो 2 चीजें हैं, उनके मरने तक किसी को आज जैन धर्म मिला है, जैन शासन मिला है या कुछ भी एक नौकार मंत्र भी मिला है तो वो बहुत सुखी है, कितनी भी पीड़ा हो रही है तो उसको लास्ट मोमेंट तक जो है वो जैन शासन के साथ जुड़े रखो, वो जैना है। तो मैं इसको इस तरह से देखना चाहूंगी। संतेती साहब उसके ऊपर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, शायद देखिए मर्सी इंट्रो भी किलिंग कर सकते हो आप मुझे। मर्सी किलिंग का मेडिकल एस्पेक्ट ये है, व्हाट यू वांट टू इंक्रीज लाइफ in years or comfort in the years. That is the main principle behind going into the mercy killing or the terminal care terminal care. These are the main issues. But mercy killing is it which is done by others for a person who is suffering. That is the where the whole issue comes. But if the mercy killing is by self only, self means who is initiated by the person who is suffering, then it is a different issue. But if it is being executed by someone else, then there is a, so there I feel there is the line is not very sharp between the two. So because once you start, it can be misused to many things. Like Santhara you have mentioned, or someone has mentioned, Santhara has become more of a pradarshan. You will find many say in the newspaper, Santhara Purvak Nidhan, whereas it was really Santhara or not, and whether if it was Santhara, was it for the Pradarshan or what it was a Darshan? That is the main issue. We must discuss that one rather than going into the legality and other things. These are basically the principle of the Darshan and not the Pradarshan. That's what I again put it. They are not for the exhibitions. तो मर्सी किलिंग एक तरह से राग द्वेष से भी प्रेरित हुई समझी जा सकती है। और आमरण अनशन राग द्वेष से अन्यथा है, राग द्वेष से प्रेरित नहीं है। नहीं, पर आमरण अनशन if it is for the protest, प्रेजेंटेशन तो समझ सकते हैं, for the protest, but if it is for the self, then you go to the jungle and do the Amaran Anshan. No one has got any problem. But if you want to do middle of the city, middle of your house, amongst the 10,000 people, that's not correct. सुसाइड नहीं होना चाहिए, आमरण अनशन सुसाइड में नहीं, सुसाइड में प्रवर्तित नहीं होनी चाहिए। और मर्सी किलिंग हो सकता है हम जैनिज्म के आधार पर हम उसको राग द्वेष से प्रेरित समझ सकते हैं, वो दया का भाव उसके पेन को समझ करके, जैसा आशीष जी ने बताया, तो वो राग द्वेष से प्रेरित हो सकती है, शायद ये एक डेफिनेशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न? अगर नहीं तो बहुत सुंदर तरीके से आज का सम्मेलन का संचालन हुआ है। मैं तरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे समापन कार्यक्रम करें। थैंक यू आप सभी स्पीकर्स जिन्होंने भी आज अपने एक्सप्रेस जो व्यूज यहाँ पे रखे हैं, और ये हमें सभी को मानना पड़ेगा कि एक नया तरीका है, नया खोज है, जैसा कि डॉक्टर प्रताप संचिती जी ने कहा। और जब व्यूज नए आते हैं तो उनमें क्रिएटिविटी भी आती है और नया चिंतन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो आज के जो भी व्यूज थे उसमें अवश्य ही नई क्रिएटिविटी आएगी। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप अपने व्यूज रख सकते हैं। आज समय की कमी के कारण काफी शायद कम यहाँ पे रख पाए हो, तो वहां पर भी आप अपने व्यूज रख सकते हैं। थैंक यू सभी का और बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में डॉक्टर करण एक और आज शायद उनको टाइम नहीं दे पाए, शायद वो मुनिश जी के कहने पर आए थे आज, उन्होंने नया अपना उनको भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना था, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से थे, पर हम कभी उनको फिर आगे सुनने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू। जी करण जी अभी ऑनलाइन है और उन्होंने वीडियो ऑन किया है, अगर हमारे पास टाइम है। नहीं, बस मैं आप सभी को केवल जय जिनेंद्र कहूंगा। और पहली बार मैंने अटेंड किया है ये सेमिनार, तो मैं बहुत ओवर एंथुसियास्ट
हूँ अभी। और मुनिश्री की इंगित था कि ये आप एंजॉय करेंगे, और सचमुच में मेरे को बहुत नई चीजें मिली है इसमें। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बराबर अटेंड करता रहूंगा और मिलेंगे हम लोग। थैंक यू करें। बाकी सबका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओम अरमाज के लिए। धन्यवाद जी, आज अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। हाँ बिल्कुल।